नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे और मातरम। हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। So the Prime Minister, Mr. Modi, is in New York and at the moment he is doing yoga. Isn't that wonderful? Absolutely wonderful. No other Prime Minister has done it before. Well, as far as Mr. Modi is concerned, in the last 9 years, you can always point out to quite a few things which nobody's ever done before, which Mr. Modi has done. And that is amazing, really and truly. Of course, as far as the Congress is concerned, Congress has not missed out a single opportunity to try and make fun of Mr. Modi. We'll of course talk about that during the course of the show as well. However, by this evening, I think Mr. Modi will be in Washington, where he'll be at a private dinner with the Bidens in the White House. The Biden family, of course, is under a bit of pressure, considering the fact that Hunter Biden has pleaded guilty to 3 charges. No jail time, of course, only probation. And the Prime Minister will then address the joint houses of the US Congress. Isn't that wonderful? Fantastic, as you said. For the second time. This is, yes, the second time. Now, these are great achievements for India. I mean, we are having a international presence and the Prime Minister leads the way. Oh, yeah. He is among the few leaders, you can say, who has repeated himself continuously in various world platforms. That's right. You talk about UN, you talk about US, you talk about various other places. Wherever he is the only person among few. The other one, the Chinese premier, and then you can say Mr. Putin. He No, but as far as addressing the joint houses of the US Congress is concerned, he happens to be only the 4th world leader. Exactly. Who's going to be addressing the joint houses of the US Congress more than once. Apart from, I mean, he happens to be the 4th. After Winston Churchill, Nelson Mandela, Vladimir Zelensky, and now, of course, Mr. Narendra Modi. And that's wonderful. But as the Congress says, hey, what about my LPG cylinder? This is fine. When are you going to sell my LPG cylinder for just 450 rupees? Now, it all depends how everybody manages their campaign. Apart from national security, nationalism and all these things, I think if he takes the cylinder the right way, if he can correct the error in the cylinder, you don't have a challenge at all. Pradeep, they are being very stubborn. You know all the Congress spokespersons who've been here, all the BJP spokespersons who've been here, all the BJP leaders who've been here, they're being very, very stubborn and they're being very custard about it. We will not give freebies. Well, then you've got another Karnataka facing you in just about every other state. Yesterday we were discussing, you're already giving freebies. Yes, you are. 80 crore लोगों को आप अगर मुफ्त के राशन दे रहे हो, what is that? मुफ्त के राशन is freebies. If you are given शौचालय 12 करोड़ घर में अगर शौचालय provide कर रहे हो, that is freebie. That's different. That's welfare. But this is also part of welfare. I mean, how can you differentiate freebies? This is freebies only, if you see. Right, but we'll talk about that when we have the Congress and the BJP spokesperson with us. But at the moment, we have a very, very distinguished guest indeed, a gentleman who's made waves, who's possibly had the most successful film of the year, the Kerala Story, the director, the distinguished, remarkable and brilliant Mr. Sudipto Sen with us. Mr. Sen, very good evening, sir. Good evening, sir. Namaskar, namaskar, Vande Mataram. This is Rajiv Bajaj here, along with Advocate Pradeep Nambiar ji, and you are welcome on Nation Now. Great pleasure meeting you. I've wanted to meet you for a long, long time. Thank you so much, sir. सर आप ये बताएं, आपके ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं, मतलब माशाल्लाह जबरदस्त. You must be feeling great about yourself. I mean, the whole world, just about the entire left liberal universe is out there focused on let's get this man. How dare he do this? सर ऐसा था पहले, लेकिन अभी नहीं है. अभी नहीं है. पहले जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुई थी, ट्रेलर रिलीज होने के मतलब फिल्म रिलीज होने की 10 दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुई थी जी. तो ट्रेलर रिलीज होने के बाद से लेकर फिल्म की पहला 4-5 दिन तक बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, बहुत ज्यादा गालियां मिली, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली. लेकिन as the shows got to progress and people started watching the film, तो लोगों को और कोई शिकायत नहीं था. अगर शिकायत होता तो इतने बड़ी संख्या में फिल्म लोग नहीं देखते.
इतनी तो बड़ी संख्या, अरे साहब क्या बात हमने करते हमने हो। सारे क्रिटिसिज्म का जवाब दे दिया, और जो नंबर गेम था, जो प्रोपागेंडा करके कुछ बातें यूज किया जा रहा था, वो सारे धीरे धीरे चला गया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक लड़की 10 दिन से केरला से मुझे गाली दे रहे थे ट्विटर में। वो पब्लिक ट्विटर पेज में है मेरा। लेकिन फिल्म देखने के बाद बोले कि भैया आई एम रियली सॉरी, शी यूज द वर्ड भैया, भैया आई एम रियली सॉरी दैट I misunderstood you, misunderstood the film. It is actually you did actually the service to my religion, that is Islam. That you have actually showed that how my religion is being misused by the terrorists. My film has nothing to do with any religion. My film is actually on terrorism. Yeah, but Uh, you know, earlier during the when you showed your documentary right, in JNU, you were actually physically attacked as well. right. What was that? मतलब आपके ऊपर See, physical the thing attack? is, यार ये क्या है? हाँ, ये तो अजीबोगरीब मसला है। बड़ी भाई साहब, बजाज साहब, एक बड़ी मजेदार चीज है हमारी देश में। जी एक लेफ्ट लिबरल लोग बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं होते हैं। जी अच्छी बात है। मैं जब टेररिज्म की बात करने गए तो ये लोग बोला कि आप इस्लाम को गाली दे रहे हैं। तो ये डाइकोटोमस जो आइडियोलॉजी है ना, एक तरफ बोलते हैं टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं है, एक तरफ जब टेररिज्म की बात करो तो वो लोग रिलीजियन लेके आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जो जो एक 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 इस मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स जो था, जो माइनॉरिटी अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स था, मेरी फिल्म ने उनकी ये बलून की हवा निकाल दी है। अब इस देश में जो पिछले 70-75 साल से चल रहा था अपीसमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिमों को डेवलपमेंट होने ना देना, जी मुस्लिमों को, जैसे केरल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने के लिए, बिकॉज आई एम वर्किंग देयर ऑन फॉर लास्ट 8 years। केरल में मुस्लिम वोट जिसको जाएगा वो पावर में आएगा। सो पिनारी विजयन, आज जो सीपीएम को आजकल मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, तो सीपीएम पावर में है। आप डाइकोटोमी देखिए, 2010 में जब बीएस अच्युतानंदन बोलते हैं कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट में बदल जाएगा, तब पिनारी विजयन पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे, वो उनको खुले दिल से सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ ये सही बात है। आज बिल्कुल ऑपोजिट बातें कर रहे थे जब मेरी फिल्म रिलीज हुई कि मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया, मैं प्रोपागेंडा किया। अरे बाबा, यही बात तो 15 साल पहले आप बोल रहे थे जो मैं आज बोला। लेकिन सुदीप्तो सेन साहब ये बताएं, जो मैं गलत बात बोला, ये एक वर्ड भी उन्होंने नहीं बोल पाए, इसलिए केरल में फिल्म सुपर हिट है मेरा। बजाज अरे साहब, सर पूरे दुनिया में सुपर हिट है, पूरे हिंदुस्तान में हर एक ने देखी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमें ये अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। लेकिन सुदीप्तो सेन साहब, उसके बाद आपकी जो अगली फिल्म आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। यू मेड अ फिल्म ऑन आवर फॉर्मर बॉस, बाय द वे, बोथ प्रदीप जी एंड आई वर इन सहारा इंसिडेंटली। सहारा वो मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगले साल किया है। मैं अभी और एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, वी विल टॉक अबाउट दैट टू इन जस्ट अ व्हाइल। लेकिन उसके पहले जो भी यहाँ पर आपके बरखिलाफ, यानी कांग्रेस का जो भी स्पोक्स पर्सन आता है, जो भी आता है, वो ये कहता है देखिए इन्होंने स्टार्ट किया, 32,000 लड़कियां जो हैं वो उधर चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फिर आखिर में आकर के 3 पर आ गए और फिर उनको ये डिस्क्लेमर देना पड़ा कि दिस इज फिक्टिशियस। ये जरा इसके बारे में जरा बताएं सर प्लीज। इसमें एक तो मैं और मेरी प्रोड्यूसर विपुल जी ने 5 जून को एक वीडियो 17 मिनट की वीडियो रिलीज की है, जो वीडियो शायद बजाज साहब आपने देखा है। जी देखा। एकदम 32,000 की एक एक करके मैथमेटिक्स हम लोगों ने दे चुके हैं, तो मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। प्रॉब्लम इन लोगों का क्या है कि हमें डिस्क्रेडिट करना है, किसी भी हालत पे डिस्क्रेडिट करने की उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो अभी 32,000 की जगह अगर 31,790 होता या 33,110 होता तो क्या फर्क पड़ जाता जी। इस देश में जो टेरर नेटवर्क काम कर रहा है उत्तरी केरला की 4 डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बात करें ना, मेरे पास सारे स्टैटिस्टिक्स है। आप मेरे साथ बात करिए, सेंसर बोर्ड के पागल है क्या? 2 महीना मेरी सारे डॉक्यूमेंट लेके, फिल्म लेके, एक एक पेज हमने सेंसर बोर्ड को 3 घंटे का टेस्टिमोनियल दिए, कम से कम 200 पेज की रिसर्च वर्क हमने सेंसर बोर्ड को दिए। अब सेंसर बोर्ड पागल है क्या कि इतने दिन देखने के बाद अप्रूव करता है? जो डिस्क्लेमर आया
मैं डिस्क्लेमर के बारे में नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो कानूनन, क्योंकि वो फिल्म की फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम के बीच में नहीं होता है, जी, वो पहले होता है या एंड में होता है। दैट मीन्स मेरी फिल्म से एक भी फ्रेम काटा नहीं गया। दैट्स राइट, That is the vindication of the truth I am trying to tell. वंडरफुल, but you must be feeling absolutely wonderful considering the amount of support. Absolutely, सर, अभी तक मेरी स्टैटिस्टिक्स में 3 करोड़ 40 लाख लोग ऑफिशियली ये फिल्म हमारी देश में देख चुके हैं। वाह, 3 करोड़ 40 लाख, दिस इज द सेकंड Wow. हाईएस्ट नंबर आफ्टर आरआरआर। So I think I am humbled. I come from a very humble background from a North Bengal Assam border जगह से, असम बंगाल बॉर्डर की से आता हूँ। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी पिछले जी। 8 साल से मैं केरल में काम कर रहा था। जी। मुझे लगता है उन लड़कियों ने जिन्होंने मुझे इंस्पायर की है पिछले 8 साल में ये फिल्म बनाने के लिए, जो लड़कियों ने आए थे, आपने देखा, आपके थैंक यू सो मच that you have given so much of focus to them. The 26 girls came from Yes, Kerala yes. to tell that this is our story. This film is our story, each and every frame telling the truth. सर, मैंने इन लोगों को 3 रात 4 रात भूखे रहते हुए देखा, रोते हुए देखा रास्ते की कोने में बैठ के। तो मुझे लगता है I don't care about, I'm not much bothered about the criticism. So why are we closing our eyes to this? मेरे कहना है कि हम आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम है साहब, समस्या सामने है, अरे समस्या का समाधान निकालो यार, मतलब ये क्या है? मुझे डिस्क्रेडिट करके ये सब्जेक्ट के बारे में आग बंद कर लेने से, जो ऑस्ट्रिच की कहानी जानते हैं ना, वो ऑस्ट्रिच जो रेत में अपना सर घुसा के लगता है कि दुनिया उनको देख नहीं रहा है, मुझे हमारी देश की पॉलिटिशियंस को ऐसे लगता है, दे आर लाइक द ऑस्ट्रिच। Sayyid Saab, you know, Sayyid Saab, the Muslim leaders, especially the Muslim leaders and the Congress leaders, they say you are anti-Islam, though you are anti-conversion and anti-terror. The most, ये तो है ही, but the most thing that affect them is that Prime Minister Modi promoted your picture. They said, देखे ये Prime Minister का काम है, and then they connected to the Karnataka elections, they connected to Hindutva, the Hindutva ideology, and Mr. Sen is promoting this particular Hindutva ideology from quite some time. They said, Bajaj Saab ने 2018 का इंसिडेंस किया, JNU में जो आप अटैक, you received the best film award for that. But even then, they say you were by heart, in your heart, you are a core Hindutva person promoting the ideology of the BJP and the RSS. Sir. सर, मैं मेरी बड़ी सिंपल आंसर है। ये फिल्म की, अगर मेरी फिल्म की लिस्ट देखेंगे ना, कहाँ से कितने फुटफॉल हुई है, मेरी फिल्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहाँ है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, कहीं पे भी बीजेपी आरएसएस का गवर्नमेंट नहीं है सर। नंबर 1। नंबर 2, ये जो क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर था, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब हमारी वो 17 मिनट की वीडियो मैं और मेरी प्रोड्यूसर ने जारी किए, एक भी पॉलिटिशियन जो 1 करोड़ का दावा कर रहे थे, 10 करोड़ का दावा कर रहे थे, इंक्लूडिंग द रेस्पेक्टेबल शशि थरूर जी, ये लोग आए नहीं ये बात करने के लिए। मैंने बोला था ममता बनर्जी को क्लियर, मैं कलकत्ता जाके बोल के आए थे कि दीदी हमारे साथ बैठ के फिल्म देखिए, मैं आपके साथ बैठ के देखूंगा, अगर आपको लगे कि इस फिल्म में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल झूठ है, आई स्टैंड बाय, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं सामने खड़ा हूं। मैं गया था कलकत्ता, लेकिन क्या करूं, मतलब अगर आपके दिमाग में पॉलिटिक्स भरा है, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मेरे लिए बीजेपी आरएसएस या कांग्रेस कोई मायने नहीं रखता है। वो 26 लड़की जो बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जी, वो लड़की जिसकी माँ आज भी रोई जा रही है, जिस लड़की अभी अफगानिस्तान जेल में है, वो लड़की जिसकी बच्ची को, जिसकी माँ बाप की से गोद से उनकी बेटी को छीन लिया गया और खुदकुशी की, और हमारे कैमरा के सामने आके बोलती है मुझे जस्टिस नहीं मिला, सिर्फ उस लड़के का फोटो टांग देना आपकी फिल्म में। एक लड़की जो आके बोलती है मुझे दिन में 18 से 20 लड़के ने मुझे रेप किया है, ये सारे कैसे झूठ हो सकता है, कैसे प्रोपागेंडा हो सकता है? मैं तो मेरी मन से तो एक भी शब्द नहीं बोला ना। आप अगर फिल्म देखे हैं, मैंने 3 लड़की की कहानी बोला, ये 3 को साइंटिफिकली बोलते हैं केस स्टडीज। मेरे पास 500 लड़की की टेस्टिमोनियल है, एक फिल्म में मैं 500 लड़की की टेस्टिमोनियल डाल नहीं पाऊंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनमें से केस स्टडी पिक करना पड़ेगा, एंड मैंने वही किया।
यहाँ पे ना 3 का संख्या इंपॉर्टेंट है ना 30,000 की संख्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है जो टेरर नेटवर्क कासरगोड, कोईकोर, मल्लापुरम में चल रहा है। ये मेरी मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सीपीएम पेट्रियार की वीएस अच्युतानंदन चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बोल के गए कि केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। आप बताइए कि ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मैं एक फिल्म के जरिए बोला। क्या गलती कर दी है मैंने? उन्होंने क्या आरएसएस बीजेपी की प्रोपागेंडा कर रहे थे बीएसएस अच्युतानंदन सर? नहीं कर रहे थे ना। वो देश की एक ट्रू ट्रू नेशनलिस्ट की तरह बात की थी कि केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मैं उन्हीं की बातों को एक्सटेंड करके फिल्म में लेके आए। जी यूरोप का हालत देखिए ना सर, आज के बजट साहब, आज के तारीख में यूरोप का क्या सीन है? जी यूरोप टिकेगा कि नहीं मालूम नहीं। इस्लामिक टेररिज्म इस देश, इस दुनिया की सबसे बड़ा थ्रेट है। इसके साथ रिलीजियन का कोई रिलेशन नहीं है। सर, तो ये कहने का केरल मतलब ये हुआ जो आप अभी बता रहे हैं सुदीप्तो सेन साहब, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एंड प्रदीप जी हिमसेल्फ इज फ्रॉम केरला, सो ही इज वेरी I know Papa he, Ji he, is okay. he's very familiar with what is going on over there. But here, कहने का मतलब ये हुआ that in India we are willing to accept that the ISIS exploited Yazidi women in the same manner that you are talking about. But you are not willing to accept that they exploited Hindu, Muslim and Christian girls from Kerala. ये क्या डायकोटमी है मेरी समझ के बारे सर? Exactly. ये लोग एक इतना रिएक्शनरी की तरह डील कर रहे थे। ये इट्स नॉट अ जोक। जी इट शुड बी सीन अपन। प्रदीप जी आप बताइए कि केरल मतलब मैं मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट बना कैसे? आप आर्टिकट, मल्लापुरम के आर्टिकट के बारे में जानते हैं। जी वहाँ पे दैट आर्टिकट इज नाउ रन बाय द शरिया लॉ। Exactly. Yes. बंद हो गया वहाँ की ये बार्बर शॉप बंद हो गया। वहाँ पे कोई टेलीविजन चैनल नहीं चलता है। आप Exactly. बोलिए आलापुरा की, प्रदीप जी, आलापुरा की रास्ते में आके एक छोटे बच्चे भाषण ये स्लोगन दे रहे थे कि हिंदू और क्रिश्चियन तुम्हारी 6 फीट नीचे कब्र हमने खोद के रखे। वो वीडियो हमने जारी किया था। प्रदीप जी आपने देखा है वो बिल्कुल वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है केरल की सोसाइटी की, एक बड़ा सुंदर केरला में मलयालम लैंग्वेज में बजाज साहब मैंने फिल्म बनाया। 2 केरला एग्जिस्ट करता है बजाज साहब। जी एक कोची के ऊपर जो नॉर्दर्न केरला है, जी एक कोची के नीचे जो साउदर्न केरला है। साउदर्न केरला इज गॉड्स ओन कंट्री। पिक्चरस्क लैंडस्केप, ब्यूटीफुल, यस वाटर, समुंदर, हरे भरे ग्रीन। आप नॉर्थ में चले जाइए, सिर्फ डार्क ही डार्क दिखेगा। और वहां की जो रियलिटी है, वहां पे जो अरब से पैसा आता है, आप बताइए एनआईए के पास 103 केसेस पड़ा है सर। मैं तो चलो 32,000 का नंबर बोला, वहां के लोकल लोग बोलते 50,000 से ज्यादा लड़कियां घर छोड़ के चले गए। कोई ऐसा नहीं है कि सब सीरिया यमन गए हैं, सब घर छोड़ के चले जाते। जब रेडिकलाइजेशन हो जाते हैं वो लड़कियां घर पे रहते नहीं है। ये हमारी आशा विद्या समाजम की जो लड़कियां आई थी, वो लड़कियां बोल के गए कि इनकी रेडिकलाइजेशन कैसे होता है। Sir, Sen Saab, you're telling the right thing right in Kerala. In fact, the police investigations and many of the cases have, highlighted these things, but probably they were not allowed to go ahead after a certain point. I remember the Pakistan chief, Pervez Musharraf, in his book In the Line of Fire, before he went out, exited, he talked about the sleeper cells prevalent, especially in Kerala and Tamil, the southern states he talked about, and highlighted Kerala and Tamil Nadu. Now Kerala is on a volcano. It's about to burst anytime. It will burst. Absolutely. And what you have done is just highlighted. But you got criticism for highlighting the truth. Now, when will the society really accept? Now, how do you feel it? Because you got a prime minister who believes the same ideology. Islamic आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है. Right when he was the chief minister of Gujarat, he had that focus in mind. The terrorism is coming from here. It has to be stopped. Now he's the prime minister. You share the same view. And now, why is it so difficult for people in the Congress, the Muslim leadership, to accept certain facts and take a corrective stand to improve things in the society? Where do you find the hindrance? Because you are a thinker also. Because the way we've seen you, you highlighted the problems, and there has to be solutions too. How do you think we can bring about a change, sir? Pradeep ji, you have to understand that I need not to tell how the government in Kerala forms. It has the answer.
So far, Muslim vote used to go to Congress, so Congress was in power. Now Muslim vote is going to CPM, so CPM is in power. So everybody needs that pipe, that the vote pie, and that is the problem. That the biggest crisis in this country. You are not allowed to talk about the country's interest when it comes to religion. कुछ लोग माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग मेजोरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं. प्रॉब्लम वही है कि आप एक गरीब को रोटी देंगे ना, आपकी कोई आके बोलेगा जरूर आपका कोई एक मानसिक वो है कि आप गरीब को रोटी खिला रहे हो. बिल्कुल मत खिलाओ गरीब को रोटी. तो प्रॉब्लम क्या है कि आप holistically there is hardly any sense of nationalism, any sense of togetherness exist. It is all about your vote bank politics. लेकिन यहाँ पर सुदीप्तो सेन साहब, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करी है, जो समस्या आपने दिखाई है, प्रदर्शित करी है अपनी फिल्म में, वो समस्या तो पूरे राष्ट्र की है ना सर, सबकी है. भले आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबकी है प्रॉब्लम. बौद्ध हो सर. आईसिस का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो सबसे ज्यादा तो उन्होंने मुसलमानों को तहस-नहस किया है. एकदम परफेक्ट. इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा तो मतलब उनके विक्टिम जो रहे हैं मुसलमान रहे हैं. तो क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता कि असल में हो क्या रहा है? मेरी समझ के बाहर है. व्हाई वुड द मुस्लिम्स सर्व एज अ वोट बैंक? मेरा सवाल ये है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की आपने बात करी, कि मुसलमान जो है अपने आप को अलाउ क्यों करता है कि मैं इस फला इस पार्टी का वोट बैंक हूं क्योंकि ये आईसिस के फेवर में बोल रहा है. अभी तो मुझे बजाज साहब, अभी तो मुझे वही लग रहा है. मेरी फिल्म को क्रिटिसिज्म करने के लिए पीपल आर नॉट हाइडिंग their love for the militant organizations. Yes. They are not understanding that by criticizing my film, they are actually supporting the militant, the radical forces. Yes. Who are active in the. आपको मालूम है, मैं तो मैंगलोर के बारे में बात नहीं की. Sir, I have the document of 17,000 girls missing from Mangalore. Mangalore is कसरगोड की एकदम adjacent कर्नाटका का, साउथ कर्नाटका का पोर्शन. प्रदीप जी जानते हो. बिल्कुल, a little ahead of Kandur. मेरी कहना ये है कि it is not the question it is even यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, the conversion is a threat because ये conversion की जो पैटर्न है ना सर, बजाज सर, मैंने वही पैटर्न, पहले मुझे लगता था कि ये एक सिंपल लव और प्यार की बात है. दो एडल्ट सोल decided to get married, let them get married. लेकिन ये जो पैटर्न धीरे धीरे आए, एक इंडियननेस को, इंडियन हिंदुइज्म को एक पैटर्न के साथ डिस्क्रेडिट करना, रिडिक्यूल करना. आप देखिए हजारों वीडियो यूट्यूब में मिलेगा जहां पे बोलता है श्री कृष्ण कौन है, ये तो हर लड़की से मोहब्बत कर लेता है. शिव के बारे में बोलता है, अरे आप लोग एक पेनिस को एक बंदे की एक भगवान नाम देते हो, उसकी पेनिस को पूजा करते हो. ये वीडियो मेरी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मैं मेरी फिल्म में आसमान से नहीं बोला. हजारों की वीडियो आप देखेंगे जो रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस चलता रहता है. ये जाकिर नायक के वीडियो आप देखिए. ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने पॉलिटिक्स में, ये लोग अपनी एजेंडा में सही जगह पे है. हम बांटे हुए हैं. हम हमारी इंटरेस्ट में ये सेकुलरिज्म के नाम पे सुदीप्तो सेन साहब, आपके खुद के व्यक्तिगत विचार, हम इन लोगों की वही जाकिर नायक को सपोर्ट कर रहे हैं. कितना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए. बजाज साहब, आप तो मेरी सीनियर है, आप लोगों को देख के हम लोगों ने मीडिया को जाना. आपकी कंट्रीब्यूशन मैं जानता हूँ. इंडियन जर्नलिज्म में कितने बड़े कंट्रीब्यूशन आपकी है. आप बताइए, आप लोगों ने देखा है कि कहाँ गए वो उस तरह वो एनर्जी इंडियन यूथ से, कहाँ गए वो अंडरस्टैंडिंग सोच जो ये डिस्टर्ब करे कि एक फिल्म को डिस्क्रेडिट करने से यू आर बेसिकली सपोर्टिंग दोज एलिमेंट्स लाइक जाकिर नायक. Now over here I would like to ask you one thing. This is very important because Pradeep ji and I were discussing this before we started the show. Is there a central command center which is coordinating these activities, or is this developing organically? कोई umbrella organization है कि अपने आप हो रहा है ये सब? Sir, in Kerala it is very bad. The situation is very bad, and I am telling you, ISIS has more than ये मेरी नंबर है, ये I can't prove. मेरे पास कोई
मैंने अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके जुगाड़ किया, मोर देन 70,000 स्लीपर सेल मेंबर है आईसिस और तालिबान की इन केरला। जिस तरह सऊदी अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से जो पैसा आता है, आप जानते हैं, एक छोटा सा जगह पे 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिस जी तरह पैसा वो अरब सऊदी अरेबिया से आ रहा है, जिस तरह पैसा सीरिया से, टर्की से आ रहा है, बहुत डेंजरस ट्रेंड है बजाज सर। और यहाँ पे जो स्लीपर सेल काम करता है, आप देखिए पिछले 4 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट जी सिंगापुर में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में और मलेशिया में, चारों की चारों केरल के लड़के थे। जी मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे प्रूव करूंगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज माय कन्विक्शन पिछले इतने सालों से काम करके। केरल में इतने ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो चुका है लोगों की, ये यंग माइंड से लेकर पॉलिटिकल लेवल पे, कि ये एक अगर एक सेंट्रलाइज्ड एफोर्ट नहीं लिया गया, एनआईए की तरफ से एक एफोर्ट नहीं लिया गया, एंड तो इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा बजाज सर। ये देश बहुत बड़ा क्राइसिस में है। ये सच्चिदानंदन गलत नहीं बोला था, केरल 20 साल में सर सिर्फ केरल ही नहीं है हो जाएगा। सर सिर्फ केरल ही नहीं है, मैं अभी अभी प्रदीप जी से ही बात कर रहा था। जैसे तमिलनाडु में इन चेन्नई देयर इज अ प्लेस कॉल्ड माइलापुर। माइलापुर एज यू नो इज अ वेरी एलीट ब्यूटीफुल सोसाइटी ओवर देयर, इट्स अ लवली एरिया। जैसे मुंबई की मलाबार हिल है। आई नो सर। आपको मालूम है ना वहां पे क्या हो रहा है? All the Hindu houses are being bought by a particular community which is pooling their resources, and all the people are being slowly, steadily driven out. अब मेरा ये कहना है कि सर, अब इसमें whether we are all shouting wolf या क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर आपने जो काम करना था व्यक्तिगत तौर पे आपने अपनी जिम्मेवारी निभाई है बतौर एक जिम्मेवार भारत के नागरिक और एक ब्रिलियंट प्रतिभाशाली फिल्म मेकर होने के नाते। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं सर? अब तो सरकार को एक्शन लेना है। आपको क्या लगता है सरकार एक्शन लेगी? मैं केरल को बहुत, प्रदीप जी बिलीव मी, मैं केरल को बहुत प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ इट इज गॉड्स ओन कंट्री। लेकिन इन लड़कियों को जब देखता हूँ ना, मुझे नींद उड़ जाता है कि ये लड़कियों ने क्या गुजरा है। बिल्कुल सर। मैं मलयालम लैंग्वेज में मैंने फिल्म बनाया, मेरे अंतिपोनोवेट्टम आपने सुने होंगे नाम। जी मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब इस जगह पे जाता हूँ ना, ये कोयिकोड, मल्लापुरम, ये सब कसरगोड, मुझे डर लगता है कि क्या है, क्या मतलब ये हम क्या नहीं देख पा रहे? ये पॉलिटिकल लीडर्स इतने अंधे हो गए, वो घोड़े की जैसे यू मीन दी ओल्ड जो मोपला रिबेलियन के वक्त जो मोपला राइट्स जब हुए थे, effectively the same thing is continuing now. Even at that time Gandhi ji said कि यार इसके बारे में सच मत बोलो, चुपचाप रहो। कहने का मतलब ये हुआ। And since you know and that's on record. Extension of what Pradeep ji, that's on record by the way. बिल्कुल जी। And आज जो राहुल गांधी जी when he went to US और जो उन्होंने कहा कि Indian Muslim the Muslim League is secular. Now what I'm trying to say, there's the resistance for accept the facts. जो facts है, जो हकीकत है, जो society में divide है, you got Pervez Musharraf also saying that there is sleeper cells out there in Kerala, and now your film and various other things, ground realities. Why the resistance to accept these facts and find out, to rectify the errors is because of leadership, where you accept that Muslim League is secular. This kind of statements, do you think, which the RSS and VHP and the BJP says, is a wrong statement to say? You're encouraging this trend, you're giving more fuel to those people who want to create this kind of crisis. Do you think leadership has to play a role, sir? Sain sir, and every leadership from irrespective every political party will have to accept the truth and talk on those lines. How do you see, sir? Sir, I completely agree, and NIA at times shows lot of proactiveness. They pick up many cases, almost 103 cases I can count that they have picked up. There are many serious cases are there, but at the same time, the guy who has radicalized this girl in my film, who is the Fatima, that guy is moving free. Nobody, in spite of having so many proofs against this guy, not a single police, neither from Kerala police nor from NRI, अरेस्ट तो दूर की बात है, इंटरोगेट तक भी नहीं की उस लड़के को, खुलेआम घूम रहा है,
धमकी दे रहा है उस लड़की की माँ को जो अभी अफगानिस्तान की जेल में है। तो मेरी मेरी ये जो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक अजीब दास्तान है ना, कि कभी एनआईए को लगता है कि दे विल सॉर्ट आउट प्रॉब्लम इमीडिएटली एंड विथ ऑल माइट, but but at a point of time we see that I see very helplessness around. I see that there are real cases needs to be interrogated again and again. I feel that why VS Achyutanandan was not been interrogated, that आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आया कि 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा? कोई ना एक चीफ मिनिस्टर है, सीपीएम की पेट्रियार्क है, कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना उनके पास जी। ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए। एनआईए उनको तो कभी नहीं पूछा। तो सर, मतलब ये सीधी एक बात है। बहुत बड़ा दलदल में फंसे हुए सिचुएशन लगता है मुझे। सुदीप्त हुसैन साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम लोग उस जो एक हाउ शैल आई पुट इट, नेहरूवियन डू नथिंग पॉलिसी जो एक चल रही थी अभी तक, उसके हम लोग शायद बाहर नहीं निकले। लेकिन आपने तो अपना काम कर दिया है माशाल्लाह। मैं सर मुझे ये लगता है कि हमारी देश मतलब जो नया भारत की बात कर रहे हैं, हमने जी। 75 साल आजादी की बात कर सर रहे हैं। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। ये जो इश्यूज है ना, ये इश्यूज हमें वो खुलेआम सेलिब्रेट करने की मौका नहीं देते, क्योंकि आई हैव सीन द पेन, द टीयर्स। एक सोचिए, एक घर में 12 लड़की जो मुसलमान बन गए थे फिर दोबारा हिंदू बनी, वो लड़कियों की घर की बिजली काट दिया जाता है। वो लोग मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, रास्ते में उसका सब्जी की बैग छीन लिया जाता है। 3-3 दिन 4-4 दिन वो लड़कियां खाना नहीं खाई। एक लड़की रिकन्वर्टेड हो गई, उसका गांव में उसका घर जला दिया गया। तो ये सारे सुनने के बाद आपको नहीं लगता है कि हमें सीरियस रीजन है? मैं सिनिकल नहीं होना चाहता कि दिल्ली में एक लड़की को 32 टुकड़े करके वो सूटकेस में भर दिया, फ्रिज में भर दिया। चलो मैं ये सारे एक लार्ज 140 करोड़ लोगों की एक एबरेशन मान सकता हूँ, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन है जिससे आप समझ रहे हैं, आप प्रदीप जी, आप बजाज सर, आप लोग अलग अलग, आप लोगों की एक्सपीरियंस मेरे से 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है। आप लोग समझ पा रहे हैं, एक सरकार क्यों नहीं समझ पा रहे? सर ऐसा है, मुझे लगता है कि आपकी फिल्म की वजह से एक दरवाजा खोला गया है। एक दरवाजा नहीं, खिड़की खोली गई है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू हैव, आपने रोशनी डाली है किसी चीज के ऊपर। अब उसके ऊपर आगे कैसे एक्शन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है वेरी फ्रैंकली, जो जानकारी हम लोगों के पास है, एक्शन होगा और इस तरीके से एक्शन होगा कि सारी दुनिया तहलका मच जाएगा सारी दुनिया में कि ये क्या हो गया। वेरी फ्रैंकली वो होना भी चाहिए। बट दैट, बाय द वे, लेट मी एश्योर पीपल, इज नॉट मिस्टर सुदीप्तो सेन's responsibility. Let's be very clear. Mr. Sudipto Sen has fulfilled his responsibility as an Indian citizen and as a brilliant filmmaker. Once again, congratulations to you. थैंक यू सो मच। And चलते चलते सर ये तो बताएं, my former boss and elder brother, and I still love him, Mr. Subrata Roy, सारा श्री, उनके ऊपर आप पिक्चर बना रहे हैं सर, जबरदस्त। मेरा ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी मैं स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया जी। मतलब अभी डेट्स वगैरह फाइनल नहीं हुआ। मैं अगले 2-3 दिन में उनसे मिल रहा हूँ और बहुत जल्दी सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शाहरास्त्री से पहले मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म बनाने जा रहा हूँ। बजट सर, आपको मैं जल्दी बताता हूँ उसके बारे में। तो उसके बारे में अभी बता दीजिए ना सर, अनाउंसमेंट तो सर, करेंगे या आप तरन आदर्श का आप इंतजार करेंगे कि वो अब ट्वीट करेगा, उसके बाद सारी दुनिया को मैं एक्चुअली बस्तार के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। किसके ऊपर सर? बस्तार के ऊपर। अरे लवली लवली लवली, ओवर द रेड कॉरिडोर। हाँ, ओवर द रेड कॉरिडोर। शाबाश। तो जल्दी तो मतलब आपको शौक है बड़ा, आपको शौक है बड़ा बिच्छुओं के बिल में अपना हाथ डालने का। हाय 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 सर, आप लोगों से सीखा। लवली। आप भी बहुत बिच्छुओं के साथ खेले हैं, तो इतने दिन से आपकी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, मुझे मालूम है कितने दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी शो देख रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर, बट रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, मिस्टर Sudipto Sen, and congratulations once again on a wonderful film. Absolutely and truly fantastic. And by the way, this is strictly my opinion and also Advocate Pradeep Nambiarji's opinion, and I am willing to be challenged anywhere in any court of law. What Mr. Sudipto Sen has shown in his film, by the way, is not even 0.1% of the real story. The real story is so awful that we can't even talk about it.
in Yes, a public forum, because that would lead to God knows what. But I hope the NIA takes action on this and they take swift action. Otherwise, in another 5 years, it just might be too late. Mr. Yes. Sudipto Sen, thank you very much for joining us on the show. So much, So sir. nice of Pradeep, you. thank you so much, Thank you sir. so much. Namaskar, sir. Vande Mataram. Very, very. Vande Mataram. God bless you, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much. That was lovely. And in case you have anything to say on the Kerala story and on Mr. Sudipto Sen, please do send in your comments, and I'd love to read them out. Whatever be your opinion, I'll read them out, as you know. I'm sure we're going to get a lot of abuse on this one from a lot of our friends. Right at the moment with us, and I'm not going to talk to him about the Kerala story, and I don't think he'll talk about it either. And if he wants to talk about it, welcome, lovely, Mr. Bharat Soni. Bharat Soni Sahab, namaskar. राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार। Namaskar. Vande Mataram, Namaskar, sir. Namaskar. Vande Mataram. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। भरत सोनी साहब, क्या करते हैं आप? मोदी जी वहां पे क्या वो आसन कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। आप कैसे कैसे आसन के बारे में आप लोग बात करते हैं? ड्रेस आसन, क्या वो मौन आसन, ये आसन, वो आसन। आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या लगा रखा है आपने यार? ऐसा तो मत करो सर, क्या कर रहे हो आप? भरत सोनी साहब। सर वैसे हम सभी को इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं देते हैं जी। और प्रधानमंत्री जी अगर आसन को, हमारे योग को अगर जो बढ़ावा दे दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन योग दिवस मनाने के लिए यूएस जाने के पहले हमारे देश में जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री जी को जाने का वक्त नहीं था, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे हैं। सर प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग और भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के लीडर नहीं मिल पा रहे, लेकिन मनोज मुंतशिर विदाउट अपॉइंटमेंट पौने घंटे उनको मिल पा रहा है। तो ये कहाँ का आसन हुआ? तो मनोज मुंतशिर वो भाई साहब जिन्होंने आदि पुरुष लिखी है, जिन्होंने जो उन्होंने उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल किया है और हनुमान जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो भगवान नहीं है, ऐसा कुछ कहा। हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा लिखा है उन्होंने, और उनको पौना घंटा मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है मणिपुर में, और मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, जिसको मैंने अगर कह दिया कि वो ट्रबल इंजन है तो गलत नहीं होगा। आप दो गुटों को लड़वा रहे हैं, और हमारे देश के गृह मंत्री वहां पर जाके आने के बाद वहां पर अभी भी नहीं रुकता है। तो व्हाट आर वी डूइंग सर? अगर हम दो ट्राइब्स को अगर हम लोग लड़वा रहे हैं और उनको हम लोग कुछ रिजोल्यूशन नहीं ले पा रहे, तो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। So that is why sarcastically we are saying about the yoga. We don't actually mean it, because our honorable Prime Minister has to spare time for our own problems, and where he campaigned some times back. That's right, he did. But why do you think he is doing that, sir? ये तो बता दो, आपके मुताबिक क्यों? Sir, बोलिए सर, प्लीज। You can't hear you. सर आपकी आवाज तो बड़ी अच्छी तरह आ रही थी अभी तक, मेरी आवाज एकदम गायब कैसे होगी? बोलिए ना सर। सर आपकी आवाज बीच में कट हो के आ रही है। ओहो, अच्छा, मेरी आवाज कट हो के आ रही है। अरे, कैन द प्रोडक्शन टीम प्लीज टेक अ लुक एट दिस। अभी ठीक है सर? जी अभी ठीक है सर। चलिए सर, बताइए आपको क्या लगता है कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर पे? सर ये तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि मोदी जी ऐसा वहां पर क्यों नहीं जा रहे। व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? उनका जो हमको सबको बताए, सर ऑल पार्टी मीट करिए, सभी लोग वहां जाके, और सभी लोगों ने मिलके इसको सुलझाना चाहिए। क्यों हम लोग पहले भी जब ऐसे दंगे होते थे और ऐसा प्रॉब्लम खड़ा होता था हमारे देश में, तो हमारे देश के सभी पार्टियों के नेता मिलके ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाके जो वॉरिंग फैक्शंस है, जो दो कम्युनिटी लड़ रही है, उनके साथ किस प्रकार से शांति का माहौल बनाया जाए और उनका दर्द क्या है। अगर उनको लास्ट
अगर हाईकोर्ट ने अगर जो उनको ले लिया है और एक कम्युनिटी को अगर जो शेड्यूल्ड ट्राइब में एंट्री दिया है, तो वो गलत गलत कहना या सही कहना, ये तो हाईकोर्ट के ऊपर हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर उस जजमेंट के बाद और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर ये हुआ है, तो हम लोगों को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सबने, हम लोग मणिपुर जैसे सेंसिटिव स्टेट को हम लोग ऐसे ही उसके हाल पे छोड़ना, लेकिन पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। प्रदीप जी, मैं आपको बता दूंगा, मणिपुर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिताई और कुकी ट्राइब जो हैं उनके बीच में इस प्रकार द्वंद्व हुई हो, इस प्रकार जंग हुई हो, इस प्रकार हिंसा हुई हो, आज तक कभी नहीं हुआ। मणिपुर यूज्ड टू बी द मोस्ट पीसफुल स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता था। प्रदीप जी, Sorry साहब, the BJP and the Prime Minister want to talk to you, the Congress, about Amrit Kal and the Loot Kal. Amrit Kal post Modi and Loot Kal pre Modi. तो 60 years, गडकरी साहब ने बोला 60 years Congress and 9 years of the BJP. So the BJP under Modi has done double what the Congress has done in 60 years. और वो एक एक चीज बता रहे हैं। Every day the BJP says 2 कॉलेज एस्टैब्लिश हो रहा है। Every week one university is being incorporated. Now 9 साल में 7 IIM, 7 IIT. India has become the 3rd largest startup ecosystem. 97,000 startups, 100 unicorns. Sir, एक एक फिगर जो लेके आ रहा है, every day something new to show how development has progressed in this country. Soni साहब, sometimes the BJP says the Congress has no answers to it. तो कोई भी इंसिडेंट्स पकड़ के वो पूरे दिन चलाते रहते हैं। But look at the development post Modi, after Modi has taken over. Soni साहब, how are you going to challenge these figures? सर, मोदी जी सही कह रहे हैं सर। सर, हम लोग वी केम इनटू सिविलाइजेशन इन 2014। उसके पहले तो पंछी मैसेज लेके जा रहे थे, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था देश में, है ना सर। सर, आजाद, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब कुछ शहरों में इलेक्ट्रिसिटी थी, कुछ राजाओं के घर पे टेलीफोन कनेक्शंस थे, वहां एक पिन हम लोग नहीं बना सकते थे। और वहां से अगर हम लोग इस स्टेज पर लेके आए हैं इस देश को, तो उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, उस डेमोक्रेटिक सेटअप का, उस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, 5 ईयर प्लान्स का के बदौलत आज मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने देखना चाहिए कि कांग्रेस ने किस प्रकार से हमारे देश के लिए डैम्स बनाए, हमारे देश के लिए रेलवे लाइंस बिछाई, हमारे देश के लिए रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। और सर, आईआईएम्स और यूनिवर्सिटीज, ये सब कांग्रेस के जमाने की देन है। हॉस्पिटल्स, ये सब कांग्रेस के जमाने की देन है। और सर, कि अगर मोदी जी को 10 साल मिले हैं, तो मोदी जी ने भी तो, उनको इतना थंपिंग मेजॉरिटी जो मिला है, तो उन्होंने भी उस प्रकार से लेना चाहिए। लेकिन सर, हम लोग फिर से अगर जो आएंगे, मैं उनको फिर से याद दिला दूं कि सर, आपने जो 2014 में वादे किए थे, उन वादों में से आपने कितना वादे पूरा किया, तो वो एक भी नहीं बता पाएंगे। जैसे कि 2 करोड़ नौकरियां कहीं दिख नहीं रही है, काला धन आने, सर देखिए, और मोदी जी को एक मैं मानता हूं सर, कि देखिए, काला धन लाने के बाद जो 15 लाख मिलेंगे, उसमें भी बड़ा गेम था कि जो टैक्स भरता उसको पहले दिया जाएगा, जो इनकम टैक्स जो पे करते वो लोग को बेचारे को कुछ रिबेट नहीं मिलता है, तो वो लोग को 15-15 लाख रुपए पहले क्रेडिट हो जाएंगे। सर, हम लोग पिछले 9 साल से हम लोग रुक रहे हैं। सर, चलिए, ये तो हो गई 15 लाख की बात, ये तो हुई नौकरियों की बात, लेकिन बाकी के जो डेवलपमेंट्स जो होना चाहिए, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, उसमें क्या उसी प्रकार से डेवलपमेंट करवा रहे हैं सर वो? सर, भरत सोनी साहब, एक मिनट, ये जो आप बात कर रहे हैं काफी हद तक ठीक भी है, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स अ ह्यूज कंट्री, 142 करोड़ का देश है, एंड इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। लेट्स बी वेरी क्लियर, वी अप्रिशिएट द इंटेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, फार्मर्स की इनकम जो है हम डबल करेंगे, ये सब करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज हिज ब्यूरोक्रेट्स केम अलोंग एंड टोल्ड हिम कि भाई ये सब हम कर सकते हैं। हमको ठीक है, वेरी गुड, करिए, इस डायरेक्शन में चलिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, कर्नाटक में आप लोगों ने, कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे, आज कांग्रेस कह रही है कि भाई जो हमारा गवर्नमेंट का जो सर्वर है
उसको बीजेपी ने हैक कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे। ये कुछ आपको समझ में आ रहा है भरत सोनी साहब? और सेंटर से चावल नहीं आ रहा है। हाँ, वो सेंटर से चावल नहीं आ रहा है, विच इज करेक्ट बाय द वे, कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अभी चावल मत भेजिए उधर, विच इज नॉट इनकरेक्ट। जी बताएं सर। सर मैं ये कर्नाटका के मैटर के ऊपर आने के पहले मैं एक आपको और उदाहरण दूंगा सर। जी बोलिए। हिमाचल के अंदर अडानी ने प्रोजेक्ट्स लगाए थे, उसके अंदर कुछ नौकरियां दे रहे थे। जैसे हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वो उन्होंने बंद कर दिया और वो उसका प्रॉब्लम। सर आप इस प्रकार से नहीं, हम लोग सारे पार्टियां देश सेवा में जुटे हुए हैं और देश की तरक्की और देश का प्रोग्रेस करने में जुटे हुए हैं। अब आता हूं मैं कर्नाटक के अंदर, तो सर कर्नाटक का जो आईटी हब है वो पूरे वर्ल्ड ओवर फेमस है। वो जो इनिशियल ग्लिचेस जो है अभी सर्वर के अंदर, वो ठीक किया जाएगा सर, और वी आर कमिटेड टू वॉट एवर गारंटीज वी हैव गिवन। हम लोग जो जो भी गारंटीज दी है वो हम लोग पूरा करेंगे। अभी आता हूं मैं प्रदीप जी की बात, और राइस के ऊपर जो अन्ना योजना जो है उसके अंदर का राइस तो सर कौन देगा सर? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही देगा जी, करेक्ट। उसमें तो वहां से आएगा नहीं सर। अगर उसमें भी आप सिकुड़ के खींच लेंगे तो ये बात सही नहीं है ना सर। हम लोग सभी लोग देश के डेवलपमेंट के लिए ही बात करते हैं सर। सर यहाँ पर आपके साथ सारी नॉन बीजेपी संगठन जितने सब खड़े हैं, सब लोग, बिल्कुल सर, हर एक ने आपको सपोर्ट किया सर। लेकिन आप मुझे ये बताइए भरत सोनी साहब, जब यही अन्याय, नाइंसाफी आम आदमी पार्टी के साथ होती है, दिल्ली में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है कैबिनेट द्वारा, जो जीआर लेके आ जाता है, कैबिनेट रेजोल्यूशन लाते हैं टू ओवरटर्न अ जजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। That too on a Friday night. That too on a Friday night. माशाल्लाह, जबरदस्त। तो सर मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ी है? दिल्ली में कभी ना कभी आपकी भी सरकार आएगी सर। 15 साल आपने राज किया है दिल्ली में, यू नेवर हैड टू फेस दिस प्रॉब्लम इन दिल्ली। तो आप ये बताएं, तो आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग क्यों नहीं है? सर उस ऑर्डिनेंस के लिए, हम लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर। वंडरफुल, अरे क्या बात है सर। इट इज लिमिटेड दैट टू इज ब्रेकिंग ऑर्डिनेंस न्यूज़। चलिए सर, इट इज लिमिटेड टू दैट ऑर्डिनेंस। Right. इसकी मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ हो गई है और वो एडवांस स्टेज के ऊपर है सर। wonderful, absolutely wonderful to hear that. Pradeep ji, you wanted to No, ask no, something? we want to ask you, sir, Soni Saab, the consolidation of, no, you are really preparing for the elections. Just Prakash said, Congress as an organization is moving ahead with its ideologies, it's moving to take on the old vote bank of its, which has gone to the regional parties. You are very aggressive in that. Aggressive, we saw Savarkar, we saw Hedgewar out from Karnataka, we saw Rahul Gandhi saying that Muslim League is secular because Kerala Muslim League plays a big role, the Muslim vote plays a big role. You are doing fine, that's it. But how are you going to explain to the people that sometimes Rahul Gandhi is in the Hindu traditional dress with tikka, doing all kind of puja part in temples, and then he takes objections to the way Narendra Modi has done the Raj Abhishek where parliament is concerned. Then we saw Priyanka Gandhi doing Narmada Dam puja, puja. So ये mix है, aggression है, the way you are moving ahead. How do you think it's all very well matched, organized तरीके से आप जा रहे हो 2024 में सर? पूरे वोट्स आपको लेना है वापस। माइनॉरिटी जो है ना, कहते हैं कि महिला, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ये सब जोड़ के हेड ऑफ रीजनल पार्टीज आल्सो। सॉरी साहब। प्रदीप जी, ये जो मुस्लिम लीग की बात चल रही है सर, ये मुस्लिम लीग और जो बंटवारे के टाइम का मुस्लिम लीग था, ये दोनों में डिफरेंस है। हम लोग ये अभी के मुस्लिम लीग और वो मुस्लिम लीग सचमुच सेक्युलर है सर। वो लोग जो मिक्स कर रहे हैं ना, जो पहले का जो 1947 का जो मुस्लिम लीग था, उस मुस्लिम लीग में और अभी जो केरला में जो मुस्लिम लीग है, वो दोनों में फर्क है सर। वो जो बंटवारे वाला मुस्लिम लीग ये नहीं है, तो इसलिए वो सेक्युलर है, वो राहुल जी ने बताया है। And Savarkar, Hedgewar, criticizing the way
नरेंद्र मोदी जी राज अभिषेक कर रहे हैं वगैरह वगैरह ना, हाउ यू गो सर देखिए सर एंड फिर जयराम रमेश क्रिटिसाइजिंग गीता प्रेस को जिस प्रकार से अवार्ड गांधी पीस प्राइज दे दिया, यू आर वर्किंग टू अ पैटर्न टू पोलराइज द मुस्लिम वोट्स, कंसोलिडेट टुवर्ड्स अ कांग्रेस ऑन पैन इंडिया लेवल. Sir, there is nothing like polarization. Sir, when I am a Hindu, as a Hindu, if I go to temple, as a Hindu, if I am praying, sir, being a congressman, it does not mean I am a non-Hindu. I am a Hindu also, but then I don't market my Hinduism. My Hinduism, my Hindutva is different than them. I have got respect for all the religions. I don't say that this certain religion is bad, certain religion is creating violence, certain people are converting people. So those kind of things are not in our vocabulary, and that is why as a Hindu, when Priyanka ji is praying at some ghat, she is doing it as a Hindu. As a Hindu wearing a janoi, if Rahul ji is praying at some ghat, then he is doing it as a Hindu. His lineage is a Parsi lineage, sir. They pray fire god, and as per But that, he's not accepted as a Parsi. Yes, sir. He's a Hindu. Officially, he's a Hindu. That's what he says. Yes, sir. He's not accepted as a Parsi. The Parsis don't accept him because the Yes, sir. Yes. Parsis want both mother and father to be Parsi. So Yes. no, but as far as he's concerned, but that's a separate issue. All I'm trying to say is that in terms of consolidation of the Muslim vote, क्या है कि मुसलमान वोट जो है आज की तारीख में आपकी तरफ ग्रेविटेट हो रहा है. आपका जो प्रोपेगेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है प्रोपेगेंडा है, मुसलमान खतरे में, मुस्लिम खतरे में, जैसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी की शक्ल दिखा के मुसलमानों को डराते थे कि भाई सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है तुमको. आज फिर वही माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि आपने हर जगह पे जाके बोला माइनॉरिटीज खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में. तो इसकी वजह से सारे मुस्लिम आपकी तरफ आ गए हैं. तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, जिस प्रकार कांग्रेस बढ़ रही है, कि आपको शायद प्रादेशिक पार्टियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. तो मेरा ये कहना है कि आगे चल करके जैसे ममता बनर्जी हैं या एम.के. स्टालिन साहब हैं या यहाँ पर एनसीपी या शिवसेना है महाराष्ट्र में, मतलब वो आपके साथ गठबंधन क्यों करेंगे? क्योंकि आप तो उनके वोट खा जाओगे, भरत सोनी साहब. सर अभी देखिए, हम लोग ये सभी एम.के. स्टालिन साहब की पार्टी, ममता दीदी की पार्टी और उद्धव जी की शिवसेना, ये सभी पार्टी हम लोग अभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग जो देश में जिस प्रकार का माहौल बीजेपी की सरकार ने किया है उसके खिलाफ हम लोग सब एकत्र हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं. 23 को उसमें हम पटना लोग में सर उसमें हम लोग किसी को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं सर. और रही बात सर मुसलमानों को, हमने कभी ऐसा नहीं, अभी ये जो अभी के इलेक्शंस में है उसमें हमने कभी भी उनको ऐसे नहीं कहा है. मुसलमान लोगों ने खुद सोचा है कि जो लोग उनके बारे में बातें करते थे वो लोग आज उनका काम नहीं कर पा रहे, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे. तो हम लोग जैसे दूसरे धर्म को और दूसरे हमारे देश के वासियों को जैसा प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं और उनकी आवाज हमारे नेता राहुल गांधी जी उठाते हैं, और उसके तहत अगर मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो हमारे तरफ से आकर्षित होती है, तो सर इसमें हमारे क्या उसमें कर सकते हैं सर. देखिए आज के दिन में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के ये है इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो आज मुंबई में हैं 3 दिन के लिए, वो सभी लोगों से मिल रहे हैं. तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के तहत तो मिल रहे हैं, वो एक एआईसीसी का हमारा पार्ट है, उसके तहत हमारे जो नेता है एआईसीसी के माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के, वो यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं और उनको एक एश्योरेंस दे रहे कि आप लोग ऐसा बिल्कुल कतई नहीं समझे कि आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है. ये एश्योरेंस देने के लिए उनके साथ मिल रहे हैं सर. सोनी साहब, वर्षा गायकवाड़ replaced Bhai Jagtap. Bhai Jagtap was replaced by Varsha Gaikwad.
Now Nana Patole ji जिस प्रकार से वेणुगोपाल जी has pulled him up for the way without ऑर्गेनाइजेशन के बातें जिस प्रकार से सिंगल हैंडेडली और एब्सोल्यूट तरीके से उन्होंने हैंडल किया एक दो चीज विदाउट कंसल्टिंग दैट हाई कमांड, उनको भी पुल अप किया. So are we going to see a change of leadership when Nana Patole is concerned? Because your delegation from Maharashtra also with Sanjay Nirupam, everybody had met the high command saying that you want a change of leadership here. And how is the entire thing, if Nana Patole is there, not there, how is the MVA equation going to change? Because उद्धव ठाकरे जी भी जिस प्रकार से जा रहे हैं, बोले कि एवरी पार्टी इज डिक्लेयरिंग भावी मुख्यमंत्री, सब पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा भावी मुख्यमंत्री ये होगा ये होगा ये होगा. तो पहले एमवीए शुरुआत हुआ तो उद्धव ठाकरे जी सर्वा चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहेंगे. अभी हर व्यक्ति अजित पवार रोज रोज हम सीएम बनेंगे, अशोक चौहान जी का कभी नाम आता है, कोई किसी का नाम ले रहा है. डू यू थिंक डिस्टर्बेंस इज नाना पटोले जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? Is everything going to be true till the 2024 where MVA is concerned? प्रदीप जी देखिए, जहां पर मैं मुंबई प्रदेश का प्रवक्ता हूं और मुंबई प्रदेश की बात आई है तो भाई जगताप जी दिसंबर 2020 में अपॉइंट हुए थे, तो वो उनका टर्म पूरा कर चुके थे. और भाई जगताप जी ने वर्षा गायकवाड़ जी को जब वो पदभार ग्रहण जो किया, जिस दिन ओथ ऑफ ऑफिस जो उन्होंने किया, उस दिन वो बिल्कुल वहां पर प्रेजेंट थे. और ये हमारे जो बड़े नेता है उन्होंने बैठ के साथ में निर्णय लिया है कि वर्षा गायकवाड़ जी अभी लीड करेगी, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जी एक महिला होने के साथ साथ एक एग्रेसिव नेता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करती है. तो एक अदरवाइज भी एक चेंज एविटेबल था, तो उसके तहत वो किया गया. और भाई जगताप जी उनको सदैव बहन मानते हैं और वो भी कहते मेरा भाई अगर कोई है तो भाई जगताप है. तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि देयर आर 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स है. लेकिन वर्षा गायकवाड़ जी बनने के साथ सारे लोग, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के मुंबई के जो पदाधिकारी है और सभी लोग आज एक हो के काम कर रहे हैं. सर, हम लोग ने राहुल जी का बर्थडे परसों मनाया. मोहब्बत की दुकान पूरे मुंबई भर में हमें कॉल दिया गया था. 227 वार्ड के अंदर मोहब्बत की दुकानें खुली, राहुल जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और उसमें से हमारे मुलुंड में वर्षा गायकवाड़ जी आई थी और 3-4 जगह पे वो गई और वहां से हमारे भांडुप में जो एक पार्ट आता है वहां पर गई, विक्रोली गई और ऐसे हमारे बहुत से कार्यक्रम हुए. अभी सर अभी ये महाराष्ट्र प्रदेश की, जो कि मैं उनके महाराष्ट्र प्रदेश के ऊपर बोलने के लिए मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर नाना पटोले जी आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के नेता है और अगर हमारे सेंट्रल लीडरशिप को हमने ये दे के रखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ चेंज है तो अगर सेंट्रल लीडरशिप सोचती है कि इसको यहाँ पर चेंज होना है तो जरूर करती है सर, और उसके तहत वो जो निर्णय लेंगे वो हम सब उसको मान्य करेंगे. कहने का मतलब ये हुआ कि तकरीबन आपके मुंह से निकल ही गया कि नाना पटोले साहब जा रहे हैं. कहने का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं सर. खैर, भरत सोनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच सर, एंड रियली वंडरफुल. ये मुंबई के 227 वार्ड में 227 मोहब्बत की दुकान, क्या बात है साहब. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल. नमस्कार सर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू प्रदीप जी. Thank you so much. Very confident. Pictures on the social media doing yoga. Yes. Wonderful. Yoga. Yes, I know. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका. That's wonderful. The Congress, very confident Congress, really and truly wonderful. And well, as they should be. और वर्षा गायकवाड़ जी ने जो रिप्लेस किया भाई जगताप को, I don't think भाई would be very happy with it. And the BMC election is around the corner. Probably Yes, people were saying absolutely. October में elections होने वाला है. And you don't change the captain, when the match is going to be played immediately. Unless you are sure कि अक्टूबर में नहीं होने वाले. Unless you are absolutely sure कि अक्टूबर में नहीं होने वाले,
अगले साल होने वाले हैं। Yes, one option is that, and the other option is October में होने वाला है, so we want change of guard. Yes, so we want a change of guard right now before there is any more damage. Yes, बिल्कुल. और ये कहना कि कांग्रेस में फैक्शन नहीं है कभी हो सकता है? Factionalism ही है. सर कांग्रेस पार्टी की डेफिनेशन ही फैक्शनलिज्म की है, कभी हो नहीं सकता कि कांग्रेस में You have faction seen right from the day of Murli Devara being the yes president of the MRCC MRCC, right here, and continuously after that, so many presidents. and each representing one faction or the other, and all of them working against each other. It just so happened that because the cadres themselves were so strong, just because the popularity of the Congress was such कि हर घर में कांग्रेस के बहुत ज्यादा समर्थक थे, जिसकी वजह से आप लोग जीतते रहे अभी तक. But now, I think people I expect. think you saw when Gurdas Kamath was the president, Yes. how violence took place inside the MRCC That's office. right. People They roughed him up only. People started throwing chairs. And Yes. other things. I remember Kripa Shankar Singh standing on the table and telling everybody to quieten down. Or instigating them. One of the two. And he replaced Gurdas Kamath, if you remember, Yes. as president of the MRCC. Exactly. And built that new office, which looks like a corporate office Yes. of the MRCC. And now he's in the BJP. Amazing. Absolutely amazing. Wonders never cease. Do you think Mr. Kripa Shankar Singh is likely to come back to the Congress, Pradeep ji? No, I think he'll be where is the everything is fine. He's with the ruler all the time. He's Yes. with the people in power. He doesn't want to be out of power for long. Right? He doesn't want to be out of power. So in effect, that's an age-old policy that he is following, and all the very best to him. And as he himself says that he was not respected in the Congress. I wonder what I more remember respect he him needs. writing a book on Sonia Gandhi. I don't know if he's finished the book. Yes. One page every day, full of love and sympathy and gratitude. And prayers and admiration. Exactly. Fanboy moment of Mr. Kripa Shankar Singh साहब जबरदस्त तरीके से एक मतलब but then I don't know if you remember what Vilasrao Deshmukh said about him. He said कि विलासराव देशमुख जी के साथ आए गाड़ी में सायद्री तक, और वहाँ पर मालूम पड़ा कि सुशील कुमार शिंदे जी को बना दिया गया है मुख्यमंत्री, और उनको वहाँ छोड़ करके सुशील कुमार शिंदे जी का बैग लेकर के उनके साथ चले गए. ये विलासराव जी खुद बोला करते थे. मुझे मालूम नहीं है असल में सच्चाई क्या है, but he says he's loyalist of the Congress and not of individual leaders. That's right. And now he's the loyalist of the BJP. Prompt answer. And now he's the loyalist of the BJP. Right, at the moment with us we have from the Maharashtra Navnirman Sena, Mr. Yogesh Chile. Yogesh Chile साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. अरे राज साहब के बर्थडे के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है. Wonderful. But that was really lovely. वो by the way मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वो जो आप लोगों ने इतनी खूबसूरत जो रंगोली बनाई थी वो नवी मुंबई के मॉल में, वो अभी तक है कि बस वो उसी दिन के लिए थी? सर एक्चुअली वो 1 या 2 दिन ही हम रख सकते हैं, क्योंकि वो फूलों से बनी हुई रंगोली थी, तो वो ज्यादा दिन रह नहीं सकती, तो दूसरे दिन हमने पूरी वो निकाल दी थी. But it is beautiful, really beautiful, very impressive. We got lots and lots of responses to that. जिसने भी बनाई वो आपने वो लड़के की शक्ल भी दिखाई थी जिसने वो बनाई. Really beautiful. Wow, wonderful. अच्छा आप ये बताइए सर कि जहाँ तक MNS का प्रश्न है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, एक तो अमित ठाकरे जी क्योंकि अभी एडमिशन शुरू हो गए हैं कॉलेजेस वगैरह के, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, एजुकेशन माफिया के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जहाँ तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, क्या कोई आपने नया सेल खोला है या कोई ऐसी जगह दी है या कोई स्पेशल नंबर है लोगों के लिए कि वो आपको कांटेक्ट कर सकें कि जहाँ पर उनको एडमिशन में डिफिकल्टी हो रही है या उनके साथ कोई अनफेयरनेस हो रही है, ऐसा कुछ MNS ने किया है सर? योगेश साहब. सर ऑन फील्ड हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है. हमारे हर कॉलेज में हमारे यूनिट्स रहते जी. वहाँ के जो यूनिट लीडर्स रहते हैं वो कॉलेज के सामने बैनर लगाते हैं कि इस महाविद्यालय में आपको कोई भी तकलीफ हो, वो एडमिशन के बारे में हो या कोई दूसरे चीज के बारे में हो, आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. तो हमें कोई अलग नंबर लेने की जरूरत नहीं फिलहाल पड़ी है. हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो खुद हर एक महाविद्यालय के सामने बैनर लगा के लोगों को इसकी जानकारी देते हैं कि आप किस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. और
यहाँ पर ये भी सुनने में है कि जो बाकी सब लोग नहीं करवा पा रहे, आप लोग करवा पा रहे हैं। जहाँ तक एमएनएस का प्रश्न है, अगर कहीं पर कोई गलत तरीके से कुछ हो रहा है तो आप लोग ज़्यादातर उसका सुधारीकरण कर पा रहे हैं। क्या ये सच है योगेश चिले साहब? सर पूरे महाराष्ट्र में अगर आप आपके रिपोर्टर ग्राउंड लेवल पे भेजेंगे और उनको पूछेंगे कि एक बार जाके महाराष्ट्र में एमएनएस का काम कैसे चलता है आप हमें बताइए, वो आपको बताएंगे रात के 2 बजे या 3 बजे हो, एमएनएस के कार्यकर्ता को अगर किसी का फोन भी आता है कि हमें इस अस्पताल में मदद नहीं मिल रही है, आप आ सकते हैं, क्या हमारा कार्यकर्ता बेझिझक वहां पे पहुंचता है, उसको मदद करता है। कोई भी आपकी समस्या हो, एमएनएस के कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं रहते, महाराष्ट्र सैनिक हमेशा लोगों के मदद के लिए आगे रहते। बाकी किसी पार्टी में आज ये ट्रेंड आप नहीं देखेंगे, सभी सत्ता के पीछे पड़े हैं, हम लोगों के दिल जीतने के पीछे पड़े। फैंटास्टिक। प्रदीप जी, चलिए साहब, आप भी पहले शिवसेना, जो उद्धव सेना, अभी एकनाथ शिंदे सेना, वो अलग अलग हो गए। वर्धापन दिन में दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे। एक दूसरे बोल रहा था कि गद्दार दिन, दूसरे बोला स्वाभिमान दिन। तो राज साहब ने इसको बहुत तरीके से कहा कि शिवसेना किस लिए फॉर्म किया था, और आज किसी के पर्सनल एम्बिशन के वजह से आज शिवसेना का क्या हालत हुआ है। तो ये राज साहब ने बहुत दुख से वर्णन किया कि आज जो हो रहा है, आज जो स्टेट है, किसी एक व्यक्ति के पर्सनल एम्बिशन के लिए, शायद वो उद्धव जी के बारे में बोल रहे थे। तो इस पे थोड़ा अब देखो किस प्रकार से आज ये स्थिति पहुंची है शिवसेना का। चलिए साहब। सर शिवसेना मैंने बचपन से देखी है, मेरा जन्म लालबाग में हुआ है और लालबाग शिवसेना का गढ़ था एक जमाने में। Yes. जी था। आज हम नहीं कह सकते उसको गढ़, लेकिन एक जमाने में वो गढ़ था। हमारे घर घर में शिवसेना थी, हमारे रग रग में शिवसेना थी। आज जो एमएनएस काम कर रही है, महाराष्ट्र सैनिक जो काम कर रहे हैं, वो काम इसके पहले शिवसेना करती थी। बाला साहब के जो कार्यकर्ता थे वो इस तरीके से काम करते थे, इसलिए आज तक बाला साहब के जाने के बावजूद भी शिवसेना टूटी नहीं। शिवसेना के आमदार जरूर निकल गए, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता आज भी शिवसेना के साथ है। इस सत्य को हम नकार नहीं सकते, चाहे उनके आमदार चले गए हो, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता आज भी उद्धव जी के साथ है। ये उद्धव जी का कर्तव्य तो नहीं है, ये माननीय बाला साहब ने जो शिवसेना उस वक्त खड़ी की थी, उसका फायदा आज उद्धव ठाकरे जी को हो रहा है। तो माननीय राज साहब ने यही कहा था कि ठाकरे एक ऐसा नाम है जो सत्ता के पीछे नहीं दौड़ता, सत्ता ठाकरे के पीछे, ठाकरे इस नाम के पीछे दौड़ती है। आज भी आपने देखा रहेगा, हमारा सिर्फ एक एमएलए है, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, उनको अगर माननीय राज साहब को मिलना है तो उनको उनके घर पे ही आना जरूरी रहता है। उद्धव जी के साथ ऐसा नहीं है। उद्धव जी जब कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गए, तभी उन्होंने ठाकरे ये जो सरनेम है, एक्चुअली उन्होंने ये सरनेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस सरनेम के साथ जो गरिमा आई थी वो उन्होंने पूरी मिट्टी में मिला दी। आज उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम पे कोई आपको वोटिंग नहीं करेगा। उसमें अगर इनके पूरे नाम में से अगर बाला साहब निकालेंगे तो उद्धव ठाकरे नाम को महाराष्ट्र में कोई पूछता नहीं, इसके बाद भी पूछेगा नहीं। लेकिन आप अगर राज ठाकरे नाम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे नाम पे लोग शिवतीर्थ पे आते हैं, उनकी समस्या लेके आते हैं और उनके समस्याओं का हल शिवतीर्थ पे जरूर किया जाता है। ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज की तारीख में कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसे योगेश चिले साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बता रहे हैं, जो ओरिजिनल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, जो वो काम किया करती थी, आज की तारीख में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रही है। ऑफ कोर्स, बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड, वी आर नाउ इन अ मॉडर्न एरा, हर चीज इंटरनेट पे है, हर चीज फोन पे है, मोबाइल फोन पे है, तो और नेचुरली ऑल द प्रॉब्लम्स आल्सो आर समवॉट डिफरेंट। तो आज की तारीख में आपके सामने किस किस्म की समस्याएं लोग लेकर के आते हैं? पहले समस्याएं अलग हुआ करती थी जब आप छोटे थे, लालबाग में जब आप थे। आज की तारीख में जो एमएनएस के सामने जो लोग समस्या लेकर के आते हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, वो जरा बताएं। सर आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे मियाँ बीवी के झगड़े से लेकर बच्चों के एडमिशन तक हर तरीके के इश्यूज लेके लोग आते हैं।
कुछ कुछ इश्यू ऐसे रहते हैं कि जो मैं मीडिया के सामने बता भी नहीं सकता, लेकिन ऐसे इश्यू में भी हम लोगों के साथ खड़े रहते, हम लोगों को मदद करते। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो लोग इश्यूज लेके आते हैं, पुलिस वाले हमारे पास आते हैं सर जी, और क्या बोलूं मैं आपसे, जब जी। उनके बच्चों के एडमिशन नहीं होते या उनको अस्पताल में दाखला नहीं मिलता, तब पुलिस वालों को भी हमारे पास आना पड़ता है। और हमारा छोटा कार्यकर्ता भी जब किसी अस्पताल में या कॉलेज में जाता है, वो पुलिस वाले का काम भी करके देता है। इसके बावजूद और क्या मैं आपको बताऊं किस तरीके के इश्यूज हमारे पास आते हैं। फैंटास्टिक, चिले साहब, फैंटास्टिक। उद्धव ठाकरे जी ने ऐलान किया, उद्धव ठाकरे जी ने यह ऐलान किया कि 1 तारीख को उद्धव सेना का एक विराट मोर्चा होगा बीएमसी हेडक्वार्टर्स में, बीएमसी के खिलाफ। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस का 650 करोड़ का घपला है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, वायलेशन ऑफ फंड जिस प्रकार से किया, तो ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई, करप्शन के खिलाफ उद्धव सेना का लड़ाई। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या आदित्य ठाकरे इसको लीड करेंगे? तो बीएमसी में क्या चुनाव का ऐलान किया, क्या ईडी का रेड, क्या चीज मोटिवेट किया उद्धव जी को डिक्लेयर करने के लिए कि 1 तारीख को हम मोर्चा लेके जा रहे हैं? सर एक ही लाइन में बता दूं तो महाचोर चोर के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। एक ही लाइन में अगर बताएंगे तो ये खुद 20-25 साल से मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में है। 20-25 साल से ये मुंबई महानगर पालिका को लूट रहे हैं। सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के फंड के दम पे पूरे राज्य में इनकी सत्ता आई थी, और आज ये खुद ही के खिलाफ मोर्चा लेके जा रहे हैं। अभी मुझे बताइए, इनका टर्म खत्म हो गया, टर्म खत्म होने से पहले महापौर इनका था, मेयर इनका था, नगर सेवक कॉर्पोरेटर्स इनके थे। अभी ये कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है। अरे किसने किया है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो खुद आपने किया है। खुद आप ही आपके खिलाफ अगर मोर्चा निकालेंगे, लोग इतने आपको उल्लू नजर आ रहे हैं क्या? लोगों को सब समझ में आता है, लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कब इलेक्शन लगेगी और कब इनके खिलाफ हम वोटिंग करेंगे और इनको इनकी जगह दिखाएंगे। जिस दिन इलेक्शन लगेगी, मैं आपको बताता हूँ सर, ये इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब इनको लोग जरूर पूछेंगे और वोटिंग के जरिए इनको इनकी जगह दिखा देंगे। लेकिन योगेश चिले साहब, आपको लगता है कि चुनाव होंगे? जरूर होंगे सर, चुनाव लेने ही पड़ेंगे इनको। कितने कितने दिन तक चुनाव एक महीना 2 महीने आगे लेके जाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि इनको चुनाव लेना पड़ेगा। जिसने भी चुनाव के बीच में जो भी आएंगे आज, फिर वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, उनको उसका हिसाब जनता एक ना एक दिन जरूर देगी। इलेक्शन तो इनको लेना ही पड़ेगा। कितने दिन तक दिन निकालेंगे? करेक्ट, दुरुस्त बात है। लेकिन राज ठाकरे साहब एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है। मतलब मैंने किसी और को नहीं देखा जिसने बहुत क्लियर कट विकल्प एक बताया हो कि ये विजन है, ये ब्लूप्रिंट है महाराष्ट्र के लिए, ये मुंबई के लिए, ये ठाणे के लिए, ये नवी मुंबई के लिए, और इस प्रकार हम सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप जी जो हैं बार बार बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की 9 साल बेमिसाल, हर घर में लेके जाओ, क्या उस प्रकार जो आपका ब्लूप्रिंट है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, क्या आप उसको घर घर लेके जा रहे हैं योगेश चिले साहब? सर फिलहाल हमारे वर्कशॉप शुरू है इस पे, यानी हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है उनको हम हमारी ब्लूप्रिंट समझा रहे हैं। अभी ब्लूप्रिंट ये चीज ऐसी है जो लोगों के समझ में जितने हम सोचते हैं उतने फास्ट नहीं आ सकती जी। वो बारकाई से बताना पड़ता है उनको। हमारे कार्यकर्ता भी, उनको मालूम है हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई है, लेकिन किस चीज के लिए बनाई है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसका, उस पे अभी हमारे वर्कशॉप शुरू है। हम चाहते हैं कि पहले हमारे कार्यकर्ता ये सब समझ लें, उसके बाद वो लोगों को समझाएंगे, और लोगों को भी ये समझना सर जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोगों के घर के बाजू में रास्ते का काम शुरू रहता है, वहां पे बोर्ड पे लिखा रहता है कि आपका वर्क ऑर्डर क्या है, कितने दिन से कब तक आपको काम करना है, मटेरियल कौन सा यूज करना है। लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आता।
इस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। जिस दिन ये सब चीजें लोगों को समझ में आएगी, महाराष्ट्र का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हमारे कार्यकर्ता ब्लूप्रिंट समझ ले, उसके बाद हम जनता तक जरूर लेके जाएंगे। फैंटास्टिक। चलो साहब, अभी देखो 2 दिन पहले संजय राउत जो शिविर था उद्धव ठाकरे जी का, बोले कि अभी सब पार्टी अपने भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं। एमवीए इसलिए आया था कि उद्धव जी को आगे बढ़ा के उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी सीएम बनेंगे और बाकी लोग, पवार साहब ने कहा अभी क्या है कि अजित पवार सीएम बनेगा, अशोक चौहान जी सीएम बनेगा, तो सीएम का व्यक्तित्व तो टोटली खत्म हो गया और उद्धव जी को एमवीए का नेता बनकर जो आगे बढ़ा था पहले एमवीए, वो खत्म हो गया। तो संजय राउत जी का कहना है कि हम भी सोचेंगे कि एमवीए तक कब तक रहेंगे और उद्धव जी फैसला लेगा कि एमवीए के साथ रहेगा नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो आप क्या देखते हो कि एमवीए 2024 तक टिक के रहेंगे एक साथ, कि उससे पहले खत्म हो जाएगा पूरा किस्सा? सर, मैं बार बार आपको पिछले 4-5 बार भी मैंने आपको कहा कि ये एमवीए टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये विचारों के साथ जुड़ी नहीं है एक दूसरे के साथ। ये सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ आए। आज जब संजय राउत बोल रहे हैं ऐसी चीजें, तो ये खुद खुद सिद्ध कर रहे हैं कि हम सत्ता के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गए थे, ना कि विचारों के लिए, विचारों का समर्थन करने के लिए हम उनके साथ गए थे। ये खुद ही अभी संजय राउत बता रहे हैं ना कि अगर मुख्यमंत्री पद उद्धव जी को नहीं मिलता तो हम एमवीए के साथ नहीं रहेंगे। ये खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये पूरे महाराष्ट्र को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, हम सिर्फ सत्ता के साथ है, फिर वो एमवीए हो या फिर अपने मुस्लिम लीग हो या फिर ओवैसी बंधु हो, उनके साथ जाएंगे। हम सत्ता के लिए किसी के भी साथ जा सकते। ये बार बार संजय राउत बता रहे हैं उनके बातों से। जी दुरुस्त बात। चलिए साहब, ये रेड जो हो गया आज, जो कोविड स्कैम का पाटकर पे हो गए, अलग अलग जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जी के साथ लोग जो है उन पे जो रेड्स हो गए, ये क्या आप देख रहे हो आगे जाकर क्या होने वाला है? या कोविड एक बड़ा स्कैम था या एक बिगिनिंग है, फिर आगे कैग रिपोर्ट में एकनाथ शिंदे जी बोले वो भी उजागर करेंगे, एसआईटी वो होगा, एसआईटी ऑलरेडी फॉर्मुलेट कर दिया गया है, तो ये जाके कहां तक रुकने वाला है? हाउ डू यू सी द एंड ऑफ उद्धव ठाकरे जी के जो सेना है उसका वो खात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, कि किस प्रकार से, जैसे संजय राउत कर रहे हैं हम विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जेल जाने को तैयार है, कैसे देखते हो ब्रेवाडो, कैसे देखते हो संजय राउत जी का? सर, पहली बात तो ये है कि जो भी चोर है उसके घर पे अगर ईडी जाती है तो महाराष्ट्र में किसी को दुख होने वाला नहीं है। लेकिन क्या चोर सिर्फ बीजेपी और शिंदेगढ़ छोड़ के बाकी सभी पार्टियों में, इनके पार्टियों में चोर नहीं है? तो हम चाहते हैं अगर ईडी को जाना है तो हर पार्टी के उस नेता के घर पे जाए जिस नेता ने भ्रष्टाचार किया है। सिर्फ एक पार्टी को या सिर्फ विरोधी पक्ष को टारगेट करना ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, पॉलिटिकल संस्कृति बिल्कुल महाराष्ट्र की ये नहीं। महाराष्ट्र में जो मेरा अपोजिशन लीडर है उसका रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। आप अगर अपोजिशन को ही खत्म करना चाहेंगे तो ये महाराष्ट्र बिल्कुल सहेगा नहीं। फिर वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गट के नेताओं पे ईडी जाए या कांग्रेस के नेताओं पे जाए या राष्ट्रवादी के नेताओं पे जाए, ईडी को जाना है तो सभी पार्टियों के नेताओं के घर पे जाए जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो हम इस बारे में, ठीक है हम हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व के लिए हम कभी भी रास्ते पे उतरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्ववादी पार्टी अगर कुछ गलत कर रही है तो हम उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। जो सत्य के साथ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसी के साथ है। जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल संस्कृति गंदी करेगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसके साथ कभी नहीं जाएगी, कभी काम साथ में नहीं करेगी। लेकिन ये पहले कभी नहीं होता था योगेश चिल्ले साहब। आपने जो बात कही है कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को उठाकर जेल में डाल देना, उनके घर पे रेड करना, ये सब हरियाणा वगैरह में होता था, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। ये महाराष्ट्र में कभी नहीं होता था। ये इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों हो रहा है अभी? ये मतलब क्या, क्योंकि सब लोग तो महाराष्ट्र से ही हैं। महाराष्ट्र के वैचारिक वाद आपको बताता हूँ। जी बताएं। सावरकर और अंबेडकर जी में वाद था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में थे, विचारों की लड़ाई थी, महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट की। महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष और सत्ताधारी में जो बड़े लीडर्स है उनकी दोस्ती
आप देख सकते हैं विलासराव देशमुख गोपीनाथ मुंडे विचारों पे अटैक करना है, अगर मुझे उसके विचार पसंद नहीं है तो मैं उसके विचारों को अपोज करूंगा, सरकारी यंत्रणा के पास करूंगा। महाराष्ट्र की संस्कृति है कि आपको अगर किसी का विरोध करना है तो वो विचारों के साथ करो, उनके पॉलिसीज का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति विरोध महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। ये पिछले 5-6 साल में सब दुश्मनी शुरू हो गई है। सर जी, मैं आपको मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, पॉलिटिकल राजकीय कार्यकर्ता के नजरिए से आपको बताऊंगा कि आज का पॉलिटिक्स जो है अच्छा नहीं लगता सर जी। हमें भी हर वक्त डर रहता है कि मेरे अपोजिशन में जो है वो मेरे जैसे अगर नहीं सोचेगा, बड़ी सोच नहीं रखेगा तो एक ना एक दिन मुझे भी खत्म कर देगा। आज आप देख रहे हैं कोई उठ रहा है, किसी पे हमला कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। अभी जो पिछले 5-6 साल में जो शुरू हुआ है उसके वजह से महाराष्ट्र का अभी आपने जो नाम लिया है, हरियाणा रहेगा, बिहार रहेगा, उनके पॉलिटिक्स की तरह अभी महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स होने लगा है, जो महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए साहब, महाराष्ट्र की जो राजनीति है आज तक बड़ी सभ्य रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है। भले ही बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार जी में बनती ना हो पॉलिटिकली, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बैठते थे, दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बहुत ही निचले स्तर पर जाकर के शरद पवार जी ने बाला साहब पर हमला किया हो या बाला साहब ने कुछ और कहा। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष जरूर कसा है, जो दोनों अप्रिशिएट करते थे कि बाला साहब ने अगर कोई व्यंग्य कसा शरद पवार जी पे, तो शरद पवार जी ने मुझे खुद इंटरव्यू में कहा कि भाई तेरे इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे ने मेरे बारे में बहुत अच्छी तारीफ करी। इस किस्म की राइवलरी चलती थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये हो क्या गया है? अगली पीढ़ी को तो यही लगेगा, अब तो यही है पॉलिटिक्स करने का तरीका, इधर से रेड करा दो, उधर से रेड करा दो। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है तो आपको लगता नहीं है सभी पार्टियों को मिलकर के ये तय करना चाहिए कि भैया बंद कीजिए, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। चिले साहब। सर, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, महाराष्ट्र और देश के मीडिया को भी कुछ चीजों में खुद पे बंधन लाना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एक जो चैनल है उसके पत्रकार संजय राउत जी के पास गए थे और उन्होंने श्रीकांत शिंदे जी के बारे में कुछ उनसे बात पूछी, सवाल पूछा, तो संजय राउत जी थूक गए वहां पे। तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल नेता अगर कर रहे हैं तो उसी वक्त मीडिया ने संजय राउत को बैन करना चाहिए था। लेकिन आज भी महाराष्ट्र की मीडिया सुबह 9 बजे संजय राउत के पास जा रही है सवाल पूछने, तो मीडिया भी तो बढ़ावा दे रही है इन चीजों को। जिस दिन महाराष्ट्र की मीडिया इन चीजों को बढ़ावा देना बंद कर देगी, महाराष्ट्र में ये गंदी पॉलिटिक्स भी बंद हो जाएगी। यहाँ की एक संस्कृति है, उस संस्कृति को संभालना सभी का काम है। फिर वो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनका काम है, यहाँ के जो मीडिया कर्मी है उनका काम है, यहाँ की जो सामान्य जनता है उनका भी ये काम है। ऐसे किसी भी नेता को आपने बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो इस संस्कृति को, अच्छी संस्कृति को गंदी करे। तो मुझे तो मीडिया से भी कहना है कि बस कीजिए, अभी आप ऐसे गंदे लोगों को बढ़ावा देना आप भी बंद कर दीजिए। चले साहब, आप कहा कि लालबाग से आप जन्म हुआ, वहां पर पॉलिटिक्स देखा, जैसे शिवसेना का वही से टोटल 100% पैदाइश और लोगों को जो लगाव था शिवसेना से, आज जिस प्रकार से देख रहे हो आप, सावरकर वाले इशू है, हेडगेवार वाले इशू है, जयराम रमेश गीता प्रेस को अवार्ड दिया तो उनपे उंगली उठाते हैं, अपीसमेंट किस प्रकार से। तो आपको उद्धव सेना जी का स्टेटस कैसे लगता है, उद्धव ठाकरे जी का? बिकॉज हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे जी का विचार, इस चीज को लेकर कांग्रेस के साथ जुड़ना, जब कांग्रेस आज के तारीख में अपना पॉलिसी एकदम क्लियर कर दिया, मुस्लिम लीग सेक्युलर है, सावरकर हमारे खिलाफ, हम खिलाफ है, हेडगेवार खिलाफ है, जो भी हिंदुत्ववादी चीज है, मुस्लिम अपीसमेंट में गया, तो आम जो कार्यकर्ता है उद्धव शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी का, वो इस चीज को कैसे देखेंगे, वो कैसे सहेंगे और कैसे गाइड होगा कि आगे जाके 6 महीने में मुझे क्या करना है? क्या देखते हो चिले साहब आप? सर, बाला साहब जी ने कहा था जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा।
इतने स्पष्ट शब्दों में उद्धव जी के पिताजी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपने पिताजी के शब्दों के साथ प्रताड़ना, विचारों के साथ प्रताड़ना करके जिस दिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गई, उसी दिन शिवसेना की आत्मा मर गई। अभी शिवसेना जिंदा नहीं है। ये इसलिए इनको उद्धव ठाकरे गट नाम पड़ा है, इनको शिवसेना नाम से कोई बुलाता नहीं महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवसेना की आत्मा इन्होंने मार दी है। बाला साहब के विचारों की हत्या इन्होंने की है, इसलिए आज कोई भी इन्हें शिवसेना नाम से पुकारता नहीं। हमें दुख होता है, ठीक है, हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में है, फिर भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि शिवसेना खत्म हो। क्यों शिवसेना ही नहीं, महाराष्ट्र की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। महाराष्ट्र का कल्चर रहा है, यहाँ हर एक विचार को बढ़ावा दिया गया, फिर वो कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, हिंदुत्व वादी कोई बात कर रहा हो या फिर कोई सेक्युलर बात कर रहा हो, यहाँ पे हर किसी को महाराष्ट्र ने अच्छी तरीके से संभाला है, उसके विचारों को बढ़ावा दिया है। किसी विचार को खत्म करने की कोशिश कभी महाराष्ट्र में हुई नहीं है। अभी हम यही चाहेंगे, अभी भी वक्त नहीं गया है। माननीय उद्धव जी अगर आज भी अपने पिताजी के पुराने जो भाषण है वो निकाल के सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा शिवसेना वापस कैसे जिंदा की जा सकती है। आज भी शिवसेना के हर कार्यकर्ता में वो दम है कि वो फिर से एक बार अपनी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उद्धव जी को अभी जरूरत है अपने पार्टी वर्कर्स पे भरोसा रखने की। वो भरोसा रख रहे माननीय शरद पवार जी के ऊपर, वो भरोसा रख रहे अशोक चौहान जी के ऊपर। वो जिस दिन अपने पार्टी कार्यकर्ता पे भरोसा रखेंगे, शिवसेना फिर से खड़ी रहेगी। और आप ये बात लिख लो आज। आप एक चीज भूल गए और भरोसा रख रहे हैं सोनिया गांधी जी पर। हाँ और सोनिया गांधी जी के ऊपर क्या विचार थे बाला साहब ठाकरे के, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। योगेश चिले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स बीन अ रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। आप लोग इसी तरह अच्छा काम करते रहें, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करते रहें, और जिस प्रकार विद्यार्थियों के लिए आप इस वक्त काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच, जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच, रियली वंडरफुल। लेकिन एक चीज़ तो है प्रदीप जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। If you hear the very interview that we played yesterday of Bala Saheb Thackeray, Yes. वहाँ पर what did he have to say about सोनिया गांधी? I don't have to repeat it. और वहीं सोनिया जी के साथ जाकर के आपने हाथ मिला लिया। चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। खैर, that's the way things are, the way they are. But I am concerned about 16% Maharashtra votes of Bala Saheb Thackeray ji. बाला साहब ठाकरे जी का 16% वोट है, वो एक के बाद एक जो इवेंट्स हो रहा है, हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज दे सीम टू बी कंफ्यूज्ड नाउ, ये क्या हो रहा है, विचार क्या था, एंड शिंदे सीम्स टू बी हैमरिंग द फैक्ट दैट विचार हमारे साथ है, विचार ही आगे And not only that, the leaders are going towards Mr. Eknath Shinde. Now look at what is her name? Manisha Kayande. Manisha Kayande also left. I mean, that was I don't even know where to begin. क्या उद्धव ठाकरे जी को ये सब दिख नहीं रहा है क्या? मुझे तो अजीब लग रहा है थोड़ा सा। At the moment with us from the BJP we have Mr. Dharmpal Meshram. Meshram साहब नमस्कार। सर नमस्कार, सर नमस्कार। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। कैसे हैं सर? जय शिवाजी, जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी। धर्मपाल मेश्राम साहब, आज तो जबरदस्त दिन है साहब, इंटरनेशनल योगा डे। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत का डंका बजा दिया, सारी दुनिया के सामने हर देश के प्रतिनिधि ने योगा किया यूनाइटेड नेशंस के ग्राउंड्स पर, आज तो सभी हिंदुस्तानियों को गर्वान्वित होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है सर, बताएं। आपको जो लगता है वह सिर्फ आपकी और मेरी भावना नहीं है, तो इस देश के 148 करोड़ जनता की भावना है। मैं समझता हूं कि आज हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। यह मोदी जी के नेतृत्व की बात नहीं, यह मोदी जी के दृष्टि की बात नहीं, पर मोदी जी ने जो राष्ट्रीयता का विचार पूरे दुनिया को दिया है, वो योग के माध्यम से
पूरे 206 देशों में पहुंच रहा है और ये हर भारतीय के लिए आज मैं समझता हूँ बहुत गर्व और ऑनर की बात, सम्मान की बात। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस मजाक उड़ा रही है सर। सर कुछ तो लोग कहेंगे, विरोधियों का काम है कहते रहना। आई शाबाश। राहुल गांधी आपने यू आर टू यंग, मुझे आप तो बहुत छोटे हैं। आपने अमर प्रेम कब देख ली? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की पिक्चर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ चीजें देखी नहीं जाती, सुनी भी जाती है। सुनने का आदि ऐसा मान के चलता हूँ जी। पर आपकी बात पर जाते हुए समय मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी वही विपक्ष के नेता थे, खासदार थे, जो आज नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था ने उनको खासदार का ओहदा भी नकार दिया है। वही राहुल गांधी जी जो अमेरिका जाकर, लंदन जाकर देश के खिलाफ ताकतों को बल देते हुए देश के खिलाफ में बात करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने अपने कार्यकर्तृत्व से, अपने विचारों से, अपनी स्वयं स्पष्टता से, अपने दूरदृष्टि से और अपनी कर्तृत्व संपन्नता में चार चांद लगाने के हिसाब से आज दुनिया तक अपने देश का विचार योग के माध्यम से पहुंचाया है। सिर्फ योग के ही माध्यम से नहीं, आज की तारीख में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अरे और तो और छोड़िए, अभी अभी जो वो he was an invited member to the G7 press conference, not press conference, G7 conference, and Joe Biden actually went to him and asked for his autograph. तो मोदी जी ने कहा कि यार मजाक कर रहे हो? कहते नहीं नहीं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। कैन यू इमेजिन, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ ले रहे हैं एज इफ ही इज अ फैन। आई मीन, इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय को बहुत बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है, आगे किसी को क्या लगे क्या ना लगे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आपका जहां तक प्रश्न है, ये कांग्रेस जिस प्रकार आज की तारीख में हमला कर रही है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे, जरा बताएं। कांग्रेस और उनका नेतृत्व पूरी तरीके से हताश हुआ है। उनकी स्वीकार्यता देश में कहीं नहीं है। जहां पर 588 खासदारों में जब उनकी संख्या नगण्य मात्र जी, संवैधानिक व्यवस्था से उनको विरोधी पक्ष नेता पद भी जब नहीं मिल सकता, 40-44 संख्या वाला खासदारों वाला पक्ष बन के जब रह गया है और देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों ने जब उनका नेतृत्व नकार दिया है, तो ऐसी हताशा भरी अवस्था में उनका कहना उनके दृष्टि से निश्चित रूप से जायज है और इसी तरीके से कहते रहेंगे। पर इस देश का 148 करोड़वा वो हर आदमी जो पंक्ति में लास्ट खड़ा है से लेकर पहले पंक्ति तक के हर आदमी के लिए आज का दिन गर्व का और सम्मान का है, ऐसा मैं समझता हूं। मेश्राम साहब, आपका कहना है, बीजेपी का कहना है अमृत काल और कांग्रेस का था लूट काल। आपका कहना है, आप कहना कि हमने 9 साल बेमिसाल जबरदस्त काम किया। कांग्रेस प्रश्न पूछ रहा है आपसे, अर्थव्यवस्था ढामाडोल है, कृषि और किसान का प्रश्न पूछ लिया, भ्रष्टाचार मित्रवाद का प्रश्न पूछ लिया, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न पूछा आपसे, सामाजिक सद्भाव, अलग अलग गुटों में आप लोग झगड़ा लगा रहे हो, सामाजिक न्याय, महिला, दलित, SC ST OBC अल्पसंख्यक खतरे में है। तो ये हर चीज का आपने जितने भी कहा कि बेमिसाल है, कांग्रेस ने उस चीज को हाईलाइट करके स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया है कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है, 9 साल में कुछ भी बेमिसाल नहीं है, कोई भी ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही है पेपर पर, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। मेश्राम साहब, कैसे लोगों को कन्विंस करोगे आप? वकील साहब, आपके सवाल पर जाते समय मैं आपकी एक बात को सिर्फ नकारना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कोई स्टैटिस्टिक्स दिया है। तो आप देखिए, कांग्रेस ने कोई भी प्रकार का स्टैटिस्टिक्स, कोई भी प्रकार के आंकड़े उन्होंने नहीं दिए है। उन्होंने सिर्फ आरोप लगाया है। और मोदी जी के 9 साल जो है वह यह अमृतकाल में जाते समय हमने मोदी जी के नेतृत्व में 174 प्रकार की योजना इस देश के उस हर आदमी को दी जो जहां पर जरूरतमंद है, जहां पर उसकी जाति, धर्म,
वेशभूषा, भोजन पद्धति, भाषा पद्धति, इससे परे होकर, रीजन से भी परे हटकर, ये साउथ का है, इतना ही नहीं, ये पार्टी का है, ये वो पार्टी का है, उसके बगैर मोदी जी ने 174 प्रकार की योजनाएं अपने 9 साल में घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और अभी अमृत काल में प्रवेश करते समय भारतीय जनता पक्ष का हर नेता और हर कार्यकर्ता इन सारी योजनाओं का लेखा जोखा देश की जनता के सामने रख रहा है, उनको पूछ रहा है कि हमने ये काम किया है। इसकी काट और इसकी तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है, उनके पास सिर्फ आरोप है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितोद्धार की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात करते हैं, सारी की सारी झूठे वादे। देश तोड़ने का अगर काम किया है, रीजनल वाइज को बढ़ावा देने का काम किया है, तो कांग्रेस ने किया है। साउथ में जाकर साउथ की बात करेंगे, नॉर्थ में जाकर हिंदी भाषी की बात करेंगे, पश्चिम में जाकर जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। इसके सिवा कांग्रेस के पास में है क्या? महाराष्ट्र में मराठा कार्ड, पंजाब में किसान वो जो आंदोलन है उसका कार्ड, दक्षिण में कुछ और कार्ड, और बाकी देश भर में मुस्लिम कार्ड। इसके सिवाय कांग्रेस ने अपने समय में क्या किया, और ये 9 सालों का लेखा जोखा रखते समय उन्होंने सवाल कौन से पूछे? मैं समझता हूं कोई भी प्रकार का स्टैटिस्टिक्स, प्रदीप जी क्षमा करें मुझे, कि कांग्रेस ने नहीं रखा है। उन्होंने सिर्फ आरोप, और वो भी बेबुनियाद प्रकार के आरोप रखे हैं। मैं समझता हूं देश की जनता ये सब चीजें जानकर है, समझ कर है, और देश की जनता ही आने वाले समय में उसका उत्तर अपने मतपेटियों के माध्यम से निश्चित रूप से कांग्रेस को देगी। धर्मपाल मेश्राम जी, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को अब ऐसा लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोट है, यानी मुस्लिम वोट जो है, वो कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस की तरफ आ रहा है। इसलिए अगर आप देखें कांग्रेस का जो रवैया है, जैसे अभी गीता प्रेस गोरखपुर, ना गीता प्रेस गोरखपुर जो भी रहा हो, पहले कोई कंट्रोवर्सी रही हो नहीं रही हो अलग बात है, लेकिन इस बात से तो कोई मुंह मोड़ नहीं सकता कि उन्होंने तकरीबन 14 या 20 करोड़ भगवत गीता की कृतियां पूरे देश के हर घर में पहुंचाई हैं। 10 करोड़ से ज्यादा रामचरितमानस 10 करोड़ घरों में पहुंचाई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब गांधी पीस फाउंडेशन अवार्ड उनको दिया गया है, तो उस पे भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है। ये क्या है? इनको क्या लग रहा है कि ये मुस्लिम वोट इनकी तरफ आ जाएगा इस तरीके से अगर बात करेंगे? मेश्राम जी, मैं मुस्लिम समाज के वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे इस संदर्भ में बात नहीं करूंगा, पर निश्चित रूप से सच है कि कांग्रेस उस तरीके से अपनी विचारधारा को प्रस्तुत इस देश की जनता के समक्ष कर रही है। गीता प्रेस ने जो किया है, रामचरितमानस रहे, महाभारत रहे, रामायण की प्रतियां रहे, इस देश के उन सब घरों तक उन्होंने इनके माध्यम से इस देश की संस्कृति और इस देश की धरोहर पहुंचाने का काम किया है। जब इस प्रकार का काम किया जाता है तो कांग्रेस का काम उन्हें सम्मानित कर उनको प्रशंसित करना होना चाहिए, जबकि ऐसा न होकर उन्होंने उसका विरोध करना, खिलाफत करना, यह निश्चित रूप से दिखाता है कि वह जो अल्पसंख्यक वोट है, निश्चित रूप से विशेष वर्ग के वोटों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जो कि जैसा कि आपने कर्नाटक का विधानसभा का निकाल के बारे में आपने बात करी, इस संदर्भ में हमने सारी बातें कर चुके हैं कि जिस प्रकार से जो देवेगौड़ा जी का जनता दल सेक्युलर पार्टी है, उनके पाले में से तकरीबन 10% वोट छिटक कर पिछले 38 सालों में जो नहीं हुआ और पिछले 34 सालों में जो कोई भी पार्टी का बहुमत नहीं आया, उस प्रकार से वोटों का गणित बैठा कर कर्नाटक की जीत हुई है। पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस, मतदाता बेस कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। अब अगर इस प्रकार की रणनीति होगी कांग्रेस की, तो यह देश विघातक कृत्य है, और उसी कृत्य के अनुसार उनको आने वाले दिनों में देश की जनता स्वयं से जवाब भी देगी, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि आने वाला समय इसको सिद्ध करेगा। मेश्राम साहब, राहुल गांधी देश के बाहर जब जाता है, कहता है कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम्स अंडर अटैक इन इंडिया। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है। आप देखो एक पैटर्न चल रहा है देश के बाहर जाके इस बोलना, और इमीडिएटली मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, वेणुगोपाल और जो पूरे टीम है, वो फिर बाकी जो वोट शेयर है उन पे बात करता है कि देखो दलित, महिला, ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक पूरे तकलीफ में, और स्टैटिस्टिक्स ये देते हैं कि
सरकार का स्टैटिस्टिक्स है 2013 से लेके 2022 तक 29% इंक्रीज इन एट्रोसिटीज अगेंस्ट ये सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो क्या जिस प्रकार से कांग्रेस एक पैटर्न लेके चल रहा है मेश्राम साहब, आपको लग रहा है कि ये रीजनल पार्टी से पूरे वोट वापस कांग्रेस की तरफ आ जाएगा, जो पुराने कांग्रेस के वोट है, और आगे जाके 2024 में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऐसा एक संघर्ष आपको दिख रहा है 1 to 1 जिस प्रकार से चल रहा है? बिकॉज ये पूरे वोट अगर समेटता है, एक प्लान की तरफ जा रहा है, एक सीरियस प्लानिंग की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। यू थिंक 2024 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 1 to 1 फाइट होगा सब जगह? कांग्रेस ने अपने सत्ता काल में आज तक के किया क्या है? दलितों को बताओ संविधान खतरे में है, मुसलमान भाइयों को बताओ धर्म खतरे में है, ओबीसी को बताओ कि भाई मागास वर्गीयों पर कोई और जाति उच्च जाति वर्चड़ हो रही है, महिलाओं को बताओ कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बताइए कि उनका एट्रोसिटी बढ़ रही है। इन्होंने जाति, धर्म, पंथ, भाषा, वेशभूषा, भोजन पद्धति और रीजन, इनके ऊपर उठकर कभी राजनीति नहीं की। विकास की राजनीति अगर इन्होंने की होती तो आज यह दिन शायद कांग्रेस के नसीब में नहीं आता। आप जब हम लोग मोदी एक्ट 9 के माध्यम से देश की जनता के सामने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछले कांग्रेस के सत्ता काल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स कितने थे, आज 9 साल में उसमें दुगुना फर्क पड़ा है। जब हम बताते हैं कि ट्रिपल आईटी जितनी है, आईआईटी जितनी है, मेडिकल कॉलेजेस इतने हैं, हेल्थ सेंटर्स इतने हैं, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है कि एक तरफ पिछले 60 सालों में जब कांग्रेस ने 51 साल से भी ज्यादा समय तक राज किया है, उनके कार्यकाल में देश के विकास की गति 0 अगर 1 है तो मोदी जी के 9 साल के विकास की गति उसकी दुगुना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। हमने इस प्रकार का विकास का राजकारण इस देश के 148 करोड़ जनता के दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूरे प्रामाणिकता से और मोदी जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास किया है। मैं समझता और मानता हूं कि देश की जनता भोली नहीं है, देश की जनता खुली नहीं है, उसको विश्लेषण करना आता है, मूल्यमापन करना आता है, उनको व्यवहार समझता है, उनको सच्चाई समझती है। और निश्चित रूप से इस देश की जनता पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और हम सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि कांग्रेस की जातिगत, दलगत, भाषा न्याय जिस भी प्रकार की राजनीति रही है, उस राजनीति को काटकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में स्थापित होगी। लेकिन मेश्राम साहब, जिस प्रकार अभी कांग्रेस बात कर रही है महंगाई के बारे में, जिस प्रकार अभी कांग्रेस बात कर रही है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत के बारे में, पेट्रोल और डीजल की कीमत के बारे में, सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बारे में, उसका आप क्या जवाब देने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर के इस पर विचार करेगी गंभीर तौर से कि किसी भी तरीके से जो 1150 रुपए का अभी सिलेंडर बिक रहा है, क्या उसको सब्सिडी देकर या कुछ भी करके वापस 450 या 500 पर लाया जाए? क्या ऐसा कोई विचार चल रहा है? बजाज साहब, आपकी सूचनाएं बहुत रास्ते हैं, स्वीकार्य है, पर यह लोक लुभावन योजना देकर सरकार को खतरे से उठाकर देश को गड्ढे की तरफ लेके जाना मैं नहीं समझता व्यक्तिगत रूप से यह मुनासिब होगा। जो भी परिस्थितियां है पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, आज हमने श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए जी, आज आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए जी, आप देश के या साउथ एशियन और एशियन कंट्रीज नहीं तो जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड की स्थिति देख लीजिए। इनके मुकाबले में भी हमने इकोनॉमी पर सवार होकर 10वें नंबर से डायरेक्ट 5वें नंबर पर आए हैं। हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है और ऐसे करते समय इस देश को आगे लेके जाना, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के नक्शे पर भारत का वजन बढ़ाना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं समझता हूं बजाज साहब कि देश की जनता ये सब देख रही है। आज जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, देखिए ये भी बात सच है कि 2014 में 450 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज 1150 रुपए के पास पहुंच गया। लेकिन महंगाई इस प्रकार से नहीं चलती।
डीजल पेट्रोल के भाव पर कोई भी देश के सरकारों का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उसका उत्पादन हम लोग नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन इन सब चीजों पर हम लोग विजय हासिल कर पाएंगे, जब नाइट्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनको हम प्रोड्यूस करेंगे जिस दिशा में अभी सरकार जा रही है, तो निश्चित रूप से इन चीजों की जरूरत ही हमारे लिए नहीं बचेगी। और जब ये चीजों की जरूरत नहीं बचेगी, उनके खरीदार नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी जो कीमत है वह अपने आप कम हो जाएगी। भारत की सरकार, देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यह सब करते समय आप यह देखिए कि 220 करोड़ लसों का उत्पादन किया, यहाँ के हर आदमी को लस दिया, 3 डोज दिए, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन पहुंचाए। जी। यह सब कैसे कर पाएंगे? ऐसे विपरीत स्थिति में जब पूरी दुनिया ऐसे महामारियों को, जागतिक मंदी को सामने जा रही है, और भारत देश पूरे मजबूती के साथ अपनी इकोनॉमी के साथ लेकर देश के परिप्रेक्ष्य में अपना वजूद पैदा कर उसका नहीं तो अपना स्थान मजबूत कर रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने होंगे। और मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी इस देश की जनता पर मुझे विश्वास है कि यह सब सोच समझकर, इनकी खामियां, इनकी परेशानियां समझकर निश्चित रूप से आज भी देश की जनता मोदी जी के पक्ष में है। और यही सब आज आपको, मुझे और सब दुनिया भी देख रही है कि दुनिया ने भी मोदी जी का लोहा माना है, दुनिया ने मोदी जी का नेतृत्व माना है। तभी तो कोई बॉस कहता है, कोई पैरों में गिरता है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, कोई उनके ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर लेना चाहता है। तो यह उसी बात की ओर ले जा रहा है कि देश निश्चित रूप से पूरे ताकत के साथ साथ दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहा है, जिनके सामने यह सब चीजें मेरे हिसाब से। बेशराम साहब, आज उद्धव ठाकरे जी के जो कलीग्स हैं उन पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड हुआ मुंबई में, और करप्शन चार्जेस। संजय राउत जी का कहना है कि अगेन ये जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है। उनका कहना है कि आप रेड बीजेपी लीडर्स पे भी करो। संजय राउत जी ने बोले कि बहुत सारे प्रूफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिए हैं, एसआईटी कर रहे हो। तो संजय राउत जी का कहना है कि और भी एसआईटी करो, आप सिर्फ उद्धव सेना के लोगों के खिलाफ एसआईटी नहीं, और भी 2-3 एसआईटी लगाओ जो बीजेपी। तो आप, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिस प्रकार से चल रहा है। और उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई में 1 तारीख को एक विशाल मोर्चा अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ एक विशाल मोर्चा आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में वो निकालने वाले हैं। तो क्या ये संघर्ष सक्सेसफुल रहेगा? और जो ऑपोजिशन कह रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड बाय सेंट्रल एजेंसीज, ये एक सच्चाई बयान हो जाएगा लोगों के सामने? कैसे देखते हो पॉलिटिकल आने वाले अपकमिंग इवेंट्स में? एक हिंदी में, एक मराठी में मन है, कर नहीं तर डर कशाला। जिसने कुछ किया ही नहीं है तो वो डरते क्यों है? यह संविधानिक व्यवस्था नहीं है क्या? ईडी कोई स्वर्ग से थोड़ी पैदा हुई है, यह संविधानिक व्यवस्था का भाग है, पार्ट पोर्शन है। सीबीआई संवैधानिक व्यवस्था है। जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनको चौकसियों को सामने जाना पड़ेगा, चाहे फिर वो शिवसेना के रहे, उवाटा के, चाहे वो कांग्रेस के रहे। तो इन लोगों को कोई हक नहीं बनता, जिन लोगों ने अपने सत्ता काल में केतकी चितले जैसी निरागस बालिका पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, क्या शरद पवार साहब के घर के सामने किस प्रकार का माहौल बनाया गया, खुद स्वयं अपने गुंडे घुसेड़कर जिस प्रकार से काम किए गए, एसटी के कर्मचारियों का बलि लिया गया, वे लोग बताएंगे कि कानून किस प्रकार से काम करेगा? या राहुल गांधी जी बताएंगे हमें, जिनके नानी ने, जिनके आजी ने पूरे देश को जेल खाना बनाकर रख दिया था, वो संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे? अगर सच है तो सच का सामना करना पड़ेगा। अगर चौकसियों को डरते हैं तो निश्चित रूप से वो अपराधी है, और अपराधी है तो निश्चित रूप से चौकसी में जाहिर होगा, और होगा तो कानून अपने तरीके से काम करेगा। यह मैं समझ जाना चाहता हूं, और यही देश की जनता की भावनाएं भी है। और आपका दूसरा जो सवाल इसमें लगा हुआ था कि आदित्य जी ठाकरे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा निकाल नहीं रहे, वे मोर्चा निकाल रहे हैं बीएमसी के खिलाफ में। जब बीएमसी पिछले 25 सालों में जिस शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के हाथ में रही है, और कोरोना काल में जिस प्रकार के टेंडरिंग हुआ है, बिना टेंडर के वर्क ऑर्डर हुए हैं, जो कार्यादेश हुए हैं,
जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार का संजय राउत पर भी आरोप है, जिस प्रकार का शिवसेना के नेताओं के कलीग्स पर आरोप है, तो यह सब तो लोग देख रहे हैं। कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ में, कौन से बीएमसी के खिलाफ में आदित्य ठाकरे जी मोर्चा निकाल रहे हैं? वह सिर्फ मोर्चा उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, जो बेनामी कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार ठाकरे परिवार के नेतृत्व में जिन कंपनियों के लोगों ने किया है, उनको संरक्षण देने के माध्यम से, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और सरकार पर दबाव लाने के लिए इन मोर्चों का आयोजन है, जो निरस्त होगा। और मैं समझता हूं मुंबई की जनता भी यह सारी चीजें मान चुकी है। पिछले समय ही देवेंद्र जी का वरदस्त समझ लीजिए कि जहां पर महान मनसे के 6 कारपोरेटर थे और शिवसेना और भाजपा में सिर्फ 2 नगर सेवकों का फासला था, और जब मनसे के नगर सेवक भाजपा में आकर भाजपा का महापौर बन सकता था, ऐसे स्थिति में भी देवेंद्र जी ने बड़ा मन दिखाकर शिवसेना को सत्ता दिया। उन्होंने आभार मानना चाहिए, उबाटा सेना ने देवेंद्र जी का आभार मानना चाहिए। यह सिर्फ दबाव की राजनीति करने का प्रयास है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश है, पर यह जनता जान चुकी है। मैं नहीं समझता कोई भी चीजों से सरकार डरेगी, प्रशासन अपने तरीके से काम करेगा। मोर्चे से तो वैसे भी कोई डरने वाला नहीं है धर्मपाल मेश्राम जी, मोर्चे से कौन डरता है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो एजेंसी है उसको तो अपना काम करना ही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज ये है, देखिए जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी की आपने बात करी, देवेंद्र फडणवीस जी के बड़े दिल के बारे में तो साहब दाद देनी पड़ेगी, जितनी प्रशंसा की जाए वही कम है। लेट्स बी वेरी क्लियर, इसके बावजूद कि आपके पास 103 एमएलए हैं, आपने फिर भी उप मुख्यमंत्री का पद आपने स्वीकार किया। इसके बावजूद के पूरे पार्टी का मन था, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र है उसका मन था कि आप मुख्यमंत्री बनिए वरना बाहर रहिए। एक हुक्म आया दिल्ली से, and look at Mr. Devendra Fadnavis, hats off to him, look at his large heartedness and courage and the discipline. He said, I agree to be deputy chief minister under Mr. Eknath Shinde. Fantastic. किसी और पार्टी में ये देखने को नहीं मिलता साहब, किसी और पार्टी में नहीं मिलता, वो सिर्फ बीजेपी में मिलता। जी कुछ बोलने वाले थे, बोलिए। कहना चाहता हूँ, आज 103 है, भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक थे जी, और तकरीबन 18 अपक्ष विधायकों का समर्थन प्राप्त देवेंद्र जी के नेतृत्व को था जी। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ पक्षादेश को सामने रखकर देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद को बड़े मन से स्वीकारा। That's right. यही दरिया दिली का उदाहरण है। और इतना ही नहीं, इतने वैयक्तिक सामाजिक आरोपों के बावजूद जिस प्रकार की छवि उन्होंने बनाई है और जिस प्रकार के निर्णय देवेंद्र जी ले रहे हैं, हर हफ्ते जिस प्रकार के कैबिनेट से निर्णय आ रहे हैं, जिस प्रकार का बजट उन्होंने पहले महाराष्ट्र के अर्थमंत्री के रूप में ये 2022-23 का रखा है, यही दर्शाता है कि उनकी सिर्फ दरियादिली नहीं, दूरदृष्टि और समाज के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी, वफादारी और पार्टी के प्रति जिम्मेवारी, नेतृत्व के प्रति आभारी, ये सारे गुण देवेंद्र जी के दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सदियों नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है साहब, इसमें तो कोई आर्गुमेंट होती नहीं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है या इसमें कोई आर्गुमेंट करने वाली बात है। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी चीज है, मॉर्गन स्टैनली, आवर गोल्डमैन सैक्स, बिल्कुल, दे हैव जस्ट कम आउट विद वन मोर रिपोर्ट। आज एक और रिपोर्ट आई है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, मिश्रम जी, उन्होंने कहा है कि टुडे इंडिया इज अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज की तारीख में भारत, नंबर 1। नंबर 2, अगले 3.5 साल में, 4 साल भी नहीं, 3.5 साल में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इट विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अगले 7 साल में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। यानी यूएस और चाइना के बाद भारत का नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ 5 के 6 साल के बाद। This is what all international agencies are saying. So congratulations to you. The fact remains, Mr. Modi has achieved macroeconomic stability. On that there is no doubt. आज की तारीख में जिस प्रकार भव्य स्वागत हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में, आज की तारीख में
वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो मोदी जी हैं, इसलिए भी है कि मोदी जी ने जो करके दिखाया है भारत में, which nobody had believed possible, it has actually been done. So congratulations. इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर मेश्राम जी? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और इस देश के जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया, उनको प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंचाया। इसलिए इस देश का भी मैं आभारी हूं। पर उसके बीच मोदी जी जैसा नेतृत्व जो अपने कर्तृत्व संपन्नता से और पूरी निरागस ईमानदारी के साथ दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आया है और जिन्होंने इस देश को एक स्वाभिमान के साथ में दुनिया में महाशक्ति बनाने का वादा खुद से लिया है, तो ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को आह्वान करता हूं कि ऐसे नेताओं को जपना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को बल देना पड़ेगा, उनके ईमानदारी के साथ, पूरे ताकत के साथ, निष्ठा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप मोदी जी के पूरे कार्यकाल का, उनके कामों का मूल्यमापन कीजिए और उसके बाद बोलिए कि मोदी जी ने जो भी निर्णय लिए, जो भी कोई भी प्रकार का कोई छोटा निर्णय उठा के देख लीजिए या धोरण उठाकर देख लीजिए, उनका मादा सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रति वफादारी निभाने वाला ही था, इस देश को दुनिया के परिप्रेक्ष्य में महाशक्ति बनाने वाला ही था। इसलिए मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर नम्र गुजारिश इस देश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए करता हूं कि ऐसे नेता जो सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे नेताओं को जपना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। थैंक यू सो मच सर। धर्मपाल मेश्राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ बात करके बहुत मजा आता है और बहुत जोश और उल्लास के साथ आप बात करें और जो डायरेक्टली आप बात करते हैं बिल्कुल उत्साह के साथ, जबरदस्त, बिल्कुल मजा आ जाता है सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम। Thank you very much. Really wonderful. And if you have anything to say on that or whatever Mr. Mishram said, and prior to that what Mr. Sudipto Sen said, that by the way was very, very nice what he said. Do keep sending in your comments. I would love to read them out right over here. I don't know whether we have comments today. Do we have comments? Alright, we don't have any comments that we can read out today, so they must be really and truly colorful. But do keep sending in your colorful comments. I promise, irrespective of whatever the comments that we have missed out today, I will read them out tomorrow. आप अपने comments जरूर भेजते रहें. Please subscribe to our channel if you haven't already done so. From the team at Nation Now, from Pradeep ji and myself, once again, congratulations to all of you on World Yoga Day and the fact that our Prime Minister led the world at the United Nations in yoga today in New York. Now that, by the way, was a very proud moment for India. You may be opposed to Mr. Modi, you may support Mr. Modi, irrespective of whichever be the side of the political spectrum that you're on, the fact remains you cannot but feel proud as an Indian today on June the 21st, 2023. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।